आज का हमारा जो लेक्चर है वो प्योर ऑर्थोपेडिक्स के ऊपर है। आज तक आपने सब सुना रहेगा कि जितने भी लेक्चर हेल्थ बोर्ड के बैनर के नीचे हो रहे ना, वो सब एनसीडी के लेक्चर है। हार्ट, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, राइट। ये पहला सेशन है जो प्योर ऑर्थोपेडिक्स के ऊपर लेने में आया है। कोई रीज़न होगा ना, राइट। क्योंकि मुखी कामड़े यही कंप्लेन करते रहे कि अभी जमात खाने में नीचे लोग कम बैठ रहे, ऊपर लोग ज़्यादा बैठ रहे। और आप ऊपर देखेंगे ना तो काफ़ी यंगस्टर्स शिफ्ट होना शुरू हो गए। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सच्ची में बैठे हैं कि ऐसे ही ऊपर बैठे हैं, राइट। लेकिन मेरे ख्याल से वो लोग सच्ची में ऊपर बैठ रहे हैं, उनको प्रॉब्लम है। बिकॉज जैसे अभी हम लोग इवेल्युएट कर रहे हैं, ये जो ऑर्थोपेडिक इश्यूज़ है जो पहले लेट एज में होते थे, अभी ये ऑर्थोपेडिक इश्यूज़ जैसे कि घुटने की तकलीफ़, कमर की तकलीफ़ पहले 50-60 साल के बाद होती थी। अभी ये इश्यूज़ 25, 30, 40 ईयर्स में होना शुरू हो गए हैं। इसकी कोई वजह है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या वजह है। आप हार्डली ऐसा कोई एक फैमिली आपको कहाँ मिलेगी पूरे में भी दहीसर में, जोगेश्वरी में, जिसमें फैमिली में से किसी को भी ऑर्थोपेडिक इशू नहीं है। सब फैमिली में कभी ना कभी किसी को बैक पेन हुआ है, बाद में अच्छा हो गया रहेगा, नी पेन हुआ है, अच्छा हुआ रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ इश्यू है। ऐसा कोई भी नहीं है कि जो या जिसकी फैमिली में किसी को कोई भी ऑर्थोपेडिक इशू नहीं है, राइट। तो लेट्स सी ये बार बार इतने इश्यूज क्यों हो रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम ऐसी कोई चीज़ें डिस्कस करेंगे जिसके बारे में जमात को बहुत सारा कन्फ्यूजन है या આપણે કહીએ ખોટી માન્યતાઓ। પેલા આ સમજીએ, કારણ આ માન્યતાઓ તમારા દિમાગમાંથી અગર નહીં હટે તો તમે આગળ મારું લેક્ચર સમજી નહીં શકો। ઓકે, સૌથી પહેલી માન્યતા, ગરમ પાણી અને લીંબુ પીવાથી બોડીને નુકસાન થાય છે। વજન ઓછો કરવા આપણે વજન ઓછો કરવા આપણે ઘણીવાર ગરમ પાણી ને લીંબુ સવારે ઉઠીને પીએ છીએ, તો પીવું જોઈએ કે નહીં પીવું જોઈએ? એનાથી હાડકાને નુકસાન થાય કે નહીં થાય? ઓકે, હાડકાને નુકસાન થાય એમ કહેવાવાળા કેટલા છે? ન થાય એ કહેવાવાળા કેટલા છે? અને એનાથી વજન ઓછો થાય એ કહેવાવાળા કેટલા છે? વાવ, ગુડ। મતલબ વજન ઓછો કરવા માટે ઘણા લોકો ટ્રાય તો ચોક્કસ કરે છે, દેટ્સ ગુડ। સિટ્રિક એસિડ આવે એમાં, તો તમે ગરમ પાણી અને લીંબુ પીવાથી નુકસાન કોઈ નથી। એનાથી તમારા બોડીનો બેઝલ મેટાબોલિક રેટ એટલે એક ચીઝ આવે જે એનર્જી જલ્દી કન્ઝ્યુમ કરે અને તમારું વજન ઓછો થઈ શકે, પણ બહુ એક્સેસમાં નહીં કરવાનો, બિકોઝ તમે બહુ એક્સેસમાં પીઓ તો તમારા દાંત ખરાબ થઈ શકે છે। ઓકે, બીજું, પાયા સૂપ, બનાના, ભીંડી આ ખાવાથી જોઈન્ટમાં ચિકાસ આવી જાય, આવે કે નહીં આવે? આવે। તો કાલે હું કન્સલ્ટિંગ બંધ કરું છું, પાયા સૂપ અને ભીંડી જ રાખું છું। પાયા સૂપ વેચું છું, ભીંડી વેચું છું। આઈ થિંક ઓર્થોપેડિક એકદમ સિમ્પલ બની જશે, સોચવાની જરૂર જ નથી। ઓકે, પાયા સૂપ પીવાથી વજન વધશે, ઘૂંટણમાં દુખાવો વધશે। બનાના હાઈ કેલરી ફૂડ છે, એ ખાશો તોય વજન વધશે। તો કોઈ પણ અત્યાર સુધી એવો કોઈ પણ ડાયટ ડૉક્ટર લોકોને ખબર નથી, ઉપરવાળાએ ચોક્કસ ઇન્શાલ્લાહ બનાવ્યો છે, પણ અમને નથી ખબર કે જે અમે તમને કહીએ કે આ ખાઓ અને ચિકાસ આવે, એવું ડાયટ ચોક્કસ છે જે ખાવાથી હાડકાં મજબૂત થાય, તમારા સ્નાયુમાં તાકાત આવે, એ ડાયટ આપણને ખબર છે, એ આપણે ડિસ્કસ કરશું। ત્રીજું, કમરમાં ઇન્જેક્શન આપવાથી દુખાવો આવે। આમાં તો ઘણા બધા લાઈવ વિટનેસીસ હશે કે હા મને ચોક્કસ ખબર છે આવે। તો ઇન્જેક્શન આપવાથી કમરનો દુખાવો આવે કે નહીં આવે? હા યા ના? હા ના કરે છે, રાઈટ। કમરમાં ઇન્જેક્શન આપવાથી દુખાવો આવે નહીં, બિકોઝ એ ઇન્જેક્શન તમારા લિગામેન્ટમાં જાય, તમારા સ્પાઇનમાં જે ડિસ્ક આવે, જે મણકાની ગાદી આવે ત્યાં સુધી એ નીડલ પહોંચે જ નહીં। ઓકે, ચોથી ચીઝ, આપણે કોઈ પણને કહીએ ને કે ભાઈ મને ઘૂંટણની તકલીફ છે, તો ઘરમાં બધા માણસોને સલાહ આપે કે વોક કરો, તું વોક નથી કરતો, વોક કરો, તું વોક નથી કરતો।
તો તમને લાગે છે કે વોકિંગ એ બધાનું સોલ્યુશન છે? ઘૂંટણના દુખાવા હોય તો વોક કરવી કે ન કરવી? હા યા ના? બાય બાય. ના, જ્યારે દુખાવો વધારે હોય એ રાઈટ ટાઈમ નથી કે તમે વોક કરો, બિકોઝ ઓલરેડી જોઈન્ટમાં સોજો છે. તમે ચાલશો તો સોજો વધશે, જોઈન્ટ વધારે ડેમેજ થાય. દુખાવો ઓછો થઈ ગયો, ગ્રેજ્યુઅલી તમે વોક ઇન્ક્રીઝ કરો છો. વોકિંગ સારી એક્સરસાઇઝ છે. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ, કેલ્શિયમની ટેબ્લેટ ખાવાથી વજન વધે. હમણાં મને એક લેડીનો ફોન આવ્યો હતો, મને કે કેલ્શિયમની ટેબ્લેટ લખીને મને વોટ્સએપ કરને, પણ ધ્યાન રાખજે કે કેલ્શિયમની ગોળી ખાવ ને તો વજન નહીં વધે. મારા મમ્મી પણ એમ જ કહે છે, કેલ્શિયમની ગોળી ખાવ છો તો વજન વધી જાય છે. હવે મમ્મી રાઈટ છે કે ઓર્થોપેડિક રાઈટ છે? કન્ફ્યુઝન છે. કારણ કે ઓર્થોપેડિક અને સાયન્સ એમ કહે છે કે વિટામિન્સ અને કેલ્શિયમ ખાઓ તો તમારો BMR વધે, બેઝલ મેટાબોલિક રેટ વધે, અને વેટ ઓછો થાય. તો એ બધા કહેશો અમે સાયન્સવાળા નથી, અમે અમારી દેશી સિસ્ટમ બરાબર છે, રાઈટ? તો કેલ્શિયમની ટેબ્લેટ ખાવાથી ક્યારેય વજન નહીં વધે. આ પ્રૂવન છે. તમારામાંથી અગર કોઈ પણ ડાયટિશિયન પાસે ગયા હશે ને, કોઈને કહો તો જે ડાયટિશિયન પાસે ગયા હશે, તો ડાયટિશિયન હંમેશા એક મોટી લિસ્ટ લખી આપશે. એમાં કેલ્શિયમ હશે, વિટામિન્સ હશે, મિનરલ્સ હશે. કેમ? કારણ કે આ ખાવાથી તમારી બોડી કેલરી વધારે ખાશે અને વજન ઓછો થશે. જોઈન્ટનું ઇન્જેક્શન કે જોઈન્ટમાંથી પાણી કઢાવવું ન જોઈએ? કઢાવવું જોઈએ કે ન કરાવવું જોઈએ? નહીં કરાવવું જોઈએ. કોઈ હાથ નહીં લગાવતા જોઈન્ટની અંદર ઇન્જેક્શન આપશો, જોઈન્ટ ખરાબ થઈ જશે. અગર જોઈન્ટમાં બહુ સોજો હોય, બહુ પાણી ભરાનું હોય, બહુ દુખાવો હોય, તો ડૉક્ટર ટેમ્પરરી પાણી નીકાળીને તમને દુખાવો ઓછો કરી આપે. એ કાંઈ પરમનન્ટ સોલ્યુશન નથી. એ પરમનન્ટ સોલ્યુશન પણ નથી, પણ એ ટેમ્પરરી તમને દુખાવો ઓછો કરવાનો એક મોડ છે, જ્યારે તમને કમ્ફર્ટેબલ લાગે. બિકોઝ ઘણીવાર એટલું બધું પાણી હોય કે તમે ચાલી ન શકો, ઊભા નહીં રહી શકો, તો તમે એ પાણી નીકાળો તો દુખાવો ઓછો થઈ શકે. પાણી નીકાળવાનું કોઈ નુકસાન નથી. અને હવે એવા ઘણા બધા ઇન્જેક્શન આવે છે જે તમે જોઈન્ટમાં આપી શકો, જેથી જોઈન્ટની ચિકાસ વધી શકે. જોઈન્ટના ચિકાસના ઇન્જેક્શન લેવામાં કોઈ નુકસાન નથી. એનાથી જોઈન્ટની લાઈફ વધી શકે. હજી એક, વાની કોઈ દવા નથી. અને કે ને ભાઈ તમને વા થઈ ગયો છે, અને ઘણા ડૉક્ટર પણ કહેતા હોય ને તો વા છે, તમે ચિંતા નહીં કરો, આ વા છે તો રહેવાનું જ છે. એટલે પછી બીજારું પેશન્ટ શું કહે, છોડ યાર મને તો વા છે, દુખાવો મને રહેવાનો છે. વાના અલગ ડૉક્ટર આવે. અગર દવા ન હોત તો રૂમેટોलॉजिस्ट आखी एक स्पेशलिटी है, ऐसा एक पूरा स्पेशलिटी है सिर्फ वा के लिए. तो अगर दवाई नहीं होती तो वो स्पेशलिटी बनती क्यों, राइट? सो वानी पूरेपूरी दवा है, પણ એ દવા તમારે કન્ટિન્યુઅસ લેવી જોઈએ. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ, આ તમને બહુ કોન્ટ્રાડિક્ટરી લાગશે. 40-45 વર્ષ થઈ ગયા પછી નોનવેજ નહીં ખાવું જોઈએ, તો ખાવું જોઈએ કે નહીં ખાવું જોઈએ? હાર્ટના કોઈ ડૉક્ટર હશે તો કહેશે નો 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 નો. ઓર્થોપેડિક કહેશે તો કે યસ 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 યસ. કારણ કે હાર્ટ માટે નુકસાનદાયક છે, પણ હાડકા માટે પ્રોટીન ડાયટ સૌથી સારું. બિકોઝ તમારે હાડકાને મજબૂત કરવા અને સ્નાયુને મજબૂત કરવા, હાડકા પ્રોટીનથી બનેલા હોય છે. આપણે શું કહીએ, હાડકા શેનાથી બનેલા હોય? શેનાથી બનેલા હાડકા? શેનાથી? નો, હાડકા પ્રોટીનથી બનેલા હોય અને એની ઉપર કેલ્શિયમ જમા થાય. તો ખાલી કેલ્શિયમ હશે અને પ્રોટીન નહીં હશે તો ચાલશે? કારણ કે પહેલાં પ્રોટીન આવે પછી કેल्शियम આવે. तो ज़्यादा ज़रूरी प्रोटीन है, तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? नॉनवेज से. लेकिन वो नॉनवेज अपनी स्टाइल वाला नहीं होना चाहिए, वो तरी वाला ऐसा मस्त ऐसा ऊपर एक तरी का लेयर होना चाहिए. वो तरीका रॉन्ग है. अदरवाइज आपको नॉनवेज खाना बहुत ज़रूरी है. और एक आखिरी, जब भी अंडा खाना है तो क्या खाना चाहिए? वाइट. इधर कोई न्यूट्रिशनिस्ट रहेगी या कोई डायटिशियन रहेगी ना, कभी उनका भी ओपिनियन लीजिएगा, उनको भी कुछ बोलने दीजिएगा. कभी वो लोग हमेशा बोलेंगे जो वाइट पोर्शन है उसमें सिर्फ प्रोटीन है, कोई विटामिन्स नहीं है, कोई मिनरल्स नहीं है.
आपके जितने भी विटामिन वगैरह है, स्पेशली ए डी ई के, जो हम लोग बोलते हैं एसेंशियल विटामिन है, वो सिर्फ एग यॉक में है। लेकिन एग यॉक में कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है। तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ है, आपको हार्ट के प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो आपको एग यॉक कम खाना चाहिए। लेकिन जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो लोग आराम से खा सकते हैं, वो खाने में कोई नुकसान नहीं है। आपके जो भी बोन्स है उसके ना एक ग्रो करने की एक पैटर्न है। बच्चा छोटा होता है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है। जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके बोन्स हाइट में और ब्रेथ में, चौड़ाई में बड़े होते हैं। आप जितना प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन लेंगे उतनी आपकी हड्डियों में ताकत ज़्यादा आएगी। एक एज तक आपकी लंबाई बढ़ती है, जैसे कि 19-20 तक लड़कियों में, 21-22 तक बॉयज़ में। उसके आगे आपकी हाइट बढ़ नहीं सकती। लेकिन अगर आपका डाइट अच्छा है तो वो बोन्स जो 19-20 में हुए हैं एक सर्टेन एक्सटेंट तक गए हैं, बाद में भी आप उसको मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आप 45 या 50 हो जाएंगे, लेडीज़ में स्पेशली 45, जैसे आपका मेनोपॉज हो जाएगा, आपके बोन में से कैल्शियम डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा। ये ऊपर वाले की सिस्टम है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। मतलब आपके हार्मोन्स कम हो जाएंगे जेंट्स में 55 ईयर्स के बाद, और बॉयज़ में और गर्ल्स में मेनोपॉज के बाद। तो अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम विटामिन बहुत ज़्यादा है आपकी यंग एज में, तो लॉस होने के बाद भी आपके पास बहुत सारा कैल्शियम बना रहेगा। जैसे कि कोई लोग यंग एज में बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारी बैंक बैलेंस बनाते हैं, तो बुढ़ापे में काम आती है। तो ये वैसा है, अगर यंग एज में बहुत सारा कैल्शियम विटामिन जमा किया है बोन्स में, तो आगे की एज में आप अपने बोन्स को स्ट्रॉन्ग मेंटेन कर सकते हैं। 3 चीज़ें मैं एम्फेसाइज करूंगा आपके डाइट में, आपको आज से मॉडिफाई करना है। सबसे पहले आपका डाइट कैल्शियम में ज़्यादा होना चाहिए। जो कॉमन चीज़ें जहाँ पे कैल्शियम अवेलेबल है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, फिश, एग, रागी, आलमंड, कस्टर्ड एप्पल, से बहुत सारे हैं। आपको कन्फ्यूजन है, गूगल में टाइप कीजिए फूड रिच इन कैल्शियम। आपको ये फूड बढ़ाना है। सिर्फ आपको ही नहीं बढ़ाना, आपके जो बच्चे जो ग्रोइंग स्टेज में है उनको भी बढ़ाना है। बिकॉज आजकल के जो छोटे बच्चे हैं ना, वो सबको मिल्क की एलर्जी है। वो बाय डिफ़ॉल्ट सिंस बर्थ दूध की एलर्जी लेके पैदा होते हैं। उनको बोला दूध पीने का, दूध नहीं पीऊँगी और कुछ दो। तो बच्चों को वैसे ही दूध की एलर्जी हो रही है। रीज़न क्या है किसको भी नहीं मालूम, लेकिन किसको दूध नहीं पीना है। आई नो साइकोलॉजी क्या है। दूसरा विटामिन डी। ऐसे फूड्स जिसमें विटामिन डी ज़्यादा है वो आपको यूज़ करना चाहिए। प्लस एकदम सस्ता और अच्छा कोई और नुस्खा है जिसमें विटामिन डी मिलता है फ्री वाला? सनलाइट। गुड, इंटेलिजेंस काफ़ी बढ़ रहा है अपनी जमात में। कभी बैठना चाहिए? सनलाइट मतलब कौन सी सनलाइट? सुबह, दोपहर, शाम। सुबह 7 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे। ओके, सुबह जब सनराइज होता है वो टाइम पे बैठना चाहिए। ऐसा बोलने वाले कितने लोग हैं? 10 से 11 के बीच में। अच्छा, कड़ी धूप में 12 से 2 के बीच में? नहीं नहीं नहीं, नहीं। एक्चुअल जो विटामिन डी है ना वो कड़ी धूप में मिलता है। ओके, तो आइडियली आपको जब बैठना है तो तुमको 10 से 12 या 1 के बीच बैठना चाहिए। और यूजुअली आपको 15 मिनट का सन एक्सपोजर इज़ गुड इनफ। आप 15 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठिए, बिकॉज वो जो हीट रहती है वो लॉन्ग टाइम बैठने से स्किन को थोड़ा डैमेज होता है। उसके पहले की जो सनलाइट है उसमें जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। तो अगर आपको कोई इसको सन की या सन बर्न्स नहीं हो रहे तो आप 11-12 बजे के आसपास बैठ सकते हैं। और 15 मिनट का एक्सपोजर आपके लिए काफ़ी है। आपको लूज कॉटन के क्लोथ्स पहनने चाहिए, सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए। और किसको सन की एलर्जी है तो आप ग्लासेस पहन के बैठ सकते हैं। ओके, प्रोटीन किस में से मिलेगा? ऑल नॉनवेज, चिकन, फिश, एग और पल्सेस, राइट। रोटी में प्रोटीन है, चपाती, बाजरा, राइस, राइट। इसे बहुत कम है। अपने को जो चाहिए वो नॉन वेज में से मिलेगा और पल्सेस में से मिलेगा। और समझो ये फूड नहीं खाने तो दूसरा ऑप्शन क्या है? तो गोलियां खाने का। ओके, अभी अपने फिजियोथेरेपिस्ट ने आपको एक्सरसाइज बताई,
ओके। एक्सरसाइज दो टाइप की है ऑर्थोपेडिक में। एक वेट बेयरिंग एक्सरसाइज है जहां बॉडी का वेट इन्वॉल्व हो रहा है, मैं चल रहा हूं, मैं कूद रहा हूं, मैं हॉप कर रहा हूं, ये वेट बेयरिंग एक्सरसाइज में मेरा वेट ऐड हो रहा है। दूसरी नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज है, मैं साइकिलिंग कर रहा हूं, मैं स्विमिंग कर रहा हूं, मैं हाथ आगे पीछे कर रहा हूं, इसमें मेरा बॉडी का वेट नहीं आ रहा। तो अगर आपको बोन्स को मजबूत करना है तो आपकी यंग एज में आपको वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। जो यंग लोग हैं उनको वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, बिकॉज जो लोग नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करते हैं या जिसमें आपका बॉडी वेट इन्वॉल्व नहीं हो रहा, उससे आप अपने बोन्स को स्ट्रांग नहीं कर सकते। हाँ, अपने मसल को स्ट्रांग कर सकते हैं, राइट। तो 4 फॉर्म है एक्सरसाइज के। सबसे पहला योगा, जुम्बा, जिमिंग या एरोबिक्स, और अपना एवरग्रीन वॉकिंग। योगा किसने योगा करना चाहिए? सब लोग कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली ये योगा आपको स्ट्रेचिंग देंगे, आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देंगे। योगा से आपको वेट कम करना थोड़ा डिफिकल्ट है, आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे डॉक्टर साहब योगा मेरे को वेट कम करना है, मैंने योगा शुरू किया है। सी योगा वेट कम के लिए नहीं है, वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। और लीन मास मीन्स आपको स्पेशली जो फीमेल्स है आपको मसल डेवलप नहीं करने और स्ट्रेंथ डेवलप करनी है। बस अगर लड़कियों के डोले शोले दिखेंगे तो अच्छा नहीं दिखता है। तो आपके हाथ आपको स्लेंडर रखने हैं, पैर स्लेंडर रखने हैं, तो आप योगा कीजिए। योगा से आपको स्ट्रेंथ आएगी लेकिन वॉल्यूम नहीं आएगा। ओके। योगा का दूसरा एडवांटेज है कि उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, वो आपके कार्डियक फंक्शन के लिए काफ़ी अच्छा है। दूसरा जो फैंसी आइटम है वो है जुम्बा। जुम्बा एक फन है जहाँ पे म्यूजिक रहता है, आपको डांस करना है, आप एंजॉय करते हैं। ये भी यंग लोगों के लिए है, लेकिन यंग लोग में स्पेशली जो लोग ओवरवेट है उनको नहीं करना चाहिए, बिकॉज इनिशियली आपको लगता है कि नहीं मैं दौड़ूंगी कूदेंगी जल्दी वेट कम होगा, लेकिन समझो आप 85, 90, 95 kg वेट पे है और इतना वजन लेके आप दौड़ेंगे कूदेंगे, वेट ज़रूर कम हो जाएगा, लेकिन 85, 90 kg वेट जो आपके नीज पे एंकल पे पड़ रहा है, तो आप कुछ ना कुछ ऑर्थोपेडिक इश्यूज जरूर इन्वाइट करेंगे। तो पहला थोड़ा डाइट से वेट कम कीजिए, मॉडरेट लेवल में आइए, फिर जुम्बा ऐड कर सकते हैं। जिम बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, स्पेशली यंग एज में आपको करना चाहिए, काफ़ी स्ट्रेंथ बिल्डिंग है, उसमें आप एरोबिक्स वगैरह भी कर सकते हैं, वो भी आपके कार्डियक फंक्शन के लिए अच्छा है। और लास्ट एक्सरसाइज अपना एवरग्रीन, कौन सा? वॉकिंग। वॉकिंग के फ़ायदे बहुत सारे हैं। कोई मेरे को नुकसान बोल सकता है कि वॉकिंग से ये फ़ायदे नहीं हो रहे? फ़ायदे सबको मालूम है ना। ऐसी कोई चीज़ है कि बस वॉकिंग में ये फ़ायदा नहीं है, ये फ़ायदा नहीं, ये फ़ायदा नहीं है? वॉकिंग सिर्फ पैरों से होती है, हाथ सिर्फ हिलते हैं, तो वॉकिंग हम लोग बोलते हैं लोअर बॉडी एक्सरसाइज है, अपर बॉडी एक्सरसाइज नहीं है, सबसे पहली चीज़। दूसरा, वॉकिंग वेट रिडक्शन के लिए नहीं है। हमको क्या लगता है, मेरे को वेट कम करना ना, मैं वॉक करूँगा वज़न कम हो जाएगा। वॉक करने से वेट मेंटेन होता है। अगर आपको वेट कम करना है तो आपको 1, 1.5, 2 घंटा चलना पड़ेगा। और आपको कोई भी ऑर्थोपेडिक इश्यूज़ है, आप अगर 1, 1.5, 2 घंटा चलेंगे तो आपकी नी आर्थराइटिस, बैक पेन, हील पेन बढ़ सकता है। तो वॉकिंग वेट कम करने के लिए डेफिनेटली नहीं है। हाँ, वेट को मेंटेन कर सकते हैं, आप उस वक्त खाना कम कीजिए तो आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है, राइट। पोस्चर के बारे में अभी आपने सुन लिया ऑलरेडी। मैं इसमें सिर्फ 3 चीज़ें एम्फेसाइज करूंगा, स्पेशली आप लोग में से जो लोग लॉन्ग टाइम सिटिंग में इन्वॉल्व है, जो लोग डेस्क जॉब करते हैं, ऑफिस में रहते हैं, या इन जनरल आपको लगता है कि मेरा बैठना ज़्यादा है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि ऑर्थोपेडिक में सिटिंग सबसे ज़्यादा खराब है। लॉन्ग टाइम बैठने से स्पाइन में बहुत सारा लोड पड़ता है, आपकी डिस्क पे बहुत सारा प्रेशर आता है। इसलिए बैठने के लिए आपको हमेशा अपराइट बैठना चाहिए। पिक्चर में आप देख सकते हैं, आपकी बैक हमेशा पीछे टच होनी चाहिए। आपका टमी है या आपका एंटीरियर पोर्शन है वो सामने टेबल को टच होना चाहिए, ताकि आपको आगे पीछे दोनों बाजू से सपोर्ट होना चाहिए। आपके पैर ज़मीन पे टच होने चाहिए। और आपको लग रहा है नहीं ये सब नहीं जमता है ना, ऐसा नहीं बैठ सकता, मेरे को ऐसा झुक के बैठने की आदत है, कोई बात नहीं, हर 20-25 मिनट के ब्रेक लीजिए। 20-25 मिनिट था એટલે ઊભા થઈને 2 આટા મારો, પાછા બેસો, ડઝન્ટ મેટર, ચાલશે। તમને આ ન ફાવે તો વચ્ચે બ્રેક લેવો જરૂરી છે। ફક્ત તમે 20-25 મિનિટ બ્રેક લેશો તો એ તમારા સ્પાઇન પર, ડિસ્ક પર લોંગ ટર્મમાં પ્રેશર નહીં આવે। અને નેક માટે એટલે સિમ્પલ ચીઝ યાદ રાખવાની કે તમારી નેક જ્યારે 45 ડિગ્રી
આ સ્ટ્રેટ એટલે 0 કહેવાય. 45 ડિગ્રીથી નીચે જ્યારે કન્ટિન્યુઅસ કામ કરશે, લેડીઝમાં રોટલી બનાવી, આટો ગૂંદવો, શાકભાજી કાપવી, રીડિંગ, રાઇટિંગ, વોટ્સએપ, મોબાઈલ, આ બધું આમ થાય. આ બધું તમે આમ શિફ્ટ કરો. રીડિંગ ટેબલ પર હોવી જોઈએ. શાકભાજી તમે ઊભા રહીને કાપો, આમ થાય, આમ કરવી પડે. પછી બેસીને કાપો તો દેટ્સ મોર કમ્ફર્ટેબલ. એટલે કામ કરવાની પેટર્ન ચેન્જ કરો તો નેક અને બેકના ઇશ્યુ ડેવલપ જ નહીં થાય. આ બધી સિસ્ટમ તમારે યંગ એજમાં ચેન્જ કરવાની છે. ડેમેજ થયા પછી ટ્રીટમેન્ટ થશે, પણ કમ્પ્લીટ નોર્મલ થવું કોઈ વાર મુશ્કેલ થાય છે. રાઈટ? ઓકે, આજના ટોપિકમાં આ બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શન હતું ઓર્થોપેડિક્સનું. આજે આપણે 3 ટોપિક ટચ કરવાના છીએ. હું તમને બ્રીફ આઈડિયા આપીશ. તમારા જે ક્વેશ્ચન છે આપણે પછી ડીલ કરશું. ફર્સ્ટ ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસ, બીજો ટોપિક છે ઓસ્ટિયોપોરોસિસ, અને ત્રીજો ટોપિક છે સ્પોન્ડિલોસિસ, ગાદીનો દુખાવો કે મણકાનો દુખાવો, નેક પેઇન વગેરે. રાઈટ? પહેલો ટોપિક ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસ. કોઈ મને કહી શકે ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસ એટલે શું છે? આપણે જ્યારે કહીએ ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસ મીન્સ શું? હાડકાં પોલા થઈ જાય. ઓકે, ઓર કુછ? હાડકાં પોલા થઈ જાય ઇઝ ઓસ્ટિયોપોરોસિસ. ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસ એટલે હાડકું ઘસાઈ ગયું, જોઈન્ટ ઘસાઈ ગયો, ચિકાસ ઓછી થઈ ગઈ, કાર્ટિલેજ ઘસાઈ ગયું, ગાદી ઘસાઈ ગઈ. આ બધા અલગ અલગ વર્ડ છે. કોઈ તમને ડૉક્ટર કહે છે ગાદી ઘસાઈ ગઈ છે, કોઈ ચિકાસ ઓછી થઈ ગઈ છે, કોઈ કહે છે ઓઇલ નથી. આ બધું એક જ ચીજ છે. સિમ્પલ, તમારા જોઈન્ટમાં અંદર ડેમેજ થાય. નોર્મલી જોઈન્ટ તમે ફર્સ્ટ પિક્ચરમાં જોઈ શકો કે આપણા જોઈન્ટમાં કાર્ટિલેજ આવે, એક સ્મૂથ મૂવમેન્ટ માટે ઓઇલ જેવું એકદમ સ્મૂથ શાઇની સ્ટ્રક્ચર આવે, અમે એને કાર્ટિલેજ કહીએ. જ્યારે કાર્ટિલેજ ડેમેજ થવા માંડે, સ્લોલી તમારા જોઈન્ટની ચિકાસ ઓછી થઈ જાય, અને જેમ જેમ ચિકાસ ઓછી થઈ જાય અંદરનું હાડકું બે એકબીજાને ટચ થવા માંડે અને સખત દુખાવો થાય. એટલે આર્થરાઇટિસ થઈ ગઈ અને જે કાર્ટિલેજ વયું ગયું એ કાર્ટિલેજ પાછું ક્યારેય નહીં આવે. એટલે ફર્સ્ટ ગ્રેડમાંથી લાસ્ટ ગ્રેડમાં પોકવાનું આપણે અટકાવવું જોઈએ. એટલે તમારે અર્લી ડાયગ્નોઝ થવું જોઈએ કે મને આ પ્રોબ્લેમ શરૂ થયો છે અને હવે મારે લાઇફસ્ટાઈલ ચેન્જ કરવાની છે. એટલે અર્લી ડાયગ્નોસિસ, અર્લી ટ્રીટમેન્ટથી ઘણો ફાયદો થઈ શકે. જોઈન્ટ કમ્પ્લીટલી ખરાબ થઈ ગયો હોય, તમે કહો ને હવે હું બધી ટ્રીટમેન્ટ કરીશ, હું 10 કિલો વજન ઓછો કરીશ, પણ એનો કાંઈ ફરક નહીં પડે, બિકોઝ જોઈન્ટ ઓલરેડી ખરાબ થઈ ગયો છે. હવે તમને સર્જરી લાગી શકે. 2 ટાઈપના આર્થરાઇટિસ આવે. એક જે નેચરલી થાય, ઉંમરના હિસાબે બધાને થાય. આપણે જેમ જેમ એજ થઈએ વાળ કેમ સફેદ થાય, સ્કિન લૂઝ થાય, આ નેચરલ છે. આ નેચરની સિસ્ટમ છે કે આપણે એજ થઈએ તો નીમાં જ્યાં વજન આવે ત્યાં ઘણા લોકોને અંગૂઠામાં થતું હશે, આ હિસ્સામાં. એટલે બોડીનો સેકન્ડ કોમનેસ્ટ જોઈન્ટ અંગૂઠો જોઈએ જ્યાં કોમન આર્થરાઇટિસ થઈ શકે. આ એજિંગના હિસાબે છે, આ બધાને થાય છે. આના સિવાય બીજું એક વા કહીએ આપણે. વા એટલે રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ, આપણે સાંભળ્યું કહીએ, ગાઉટ કોઈએ સાંભળ્યું હોય તો, યા એસએલઈ. આ બધી સેકન્ડ આ બીમારીઓ છે, આ એજિંગના લીધે નથી. આ ક્યારે પણ તમને આવી શકે. આ મતલબ 18 વર્ષના બચ્ચાને પણ આવી શકે, 5 વર્ષના બચ્ચાને પણ આવી શકે, અને સ્લોલી બધા જ જોઈન્ટને ખાઈ જાય. એટલે આની તમને કન્ટિન્યુઅસ ટ્રીટમેન્ટ લાગે. તમે કહો મને વા થયો છે ને હું 15-20 દિવસ દવા કરું સારી થઈ જાઉં, નહીં. આ ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર, હાર્ટના ઇસ્યુ જેવું છે. એકવાર આવી બીમારી એટલે જિંદગી પર ગોળી ખાવાની. ગોળી નહીં ખાશો તો આગળ જઈને જોઈન્ટની તકલીફ થઈ શકે છે. કોમન કોઝ શું કારણ છે? એક જેનેટિક, મધર ફાધરને હોય તો તમને આવવાના ચાન્સીસ થોડા વધારે છે. સ્ટ્રોંગ રિલેશન નથી પણ થોડા ચાન્સીસ વધારે છે. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓવરવેટ. ત્રીજું, તમારા પગ વાંકા હોય. તમે અગર જોશો ને, આમાં એક સેકન્ડ પિક્ચર છે. આપણે જે એશિયન્સ છીએ અને ઇન્ડિયન સ્પેશિયલી અમે લોકો કહીએ, એશિયનમાં, ઇન્ડિયન્સમાં આપણા પગ સ્ટ્રેટ નથી, આપણા પગ નીચેથી ક્રોસ છે, આમ છે. આપણી બનાવટ છે. તો જે લોકોના પગ આમ ક્રોસ હોય એ લોકોને અંદરની બાજુ બહુ લોડ આવે. અધરવાઇઝ નોર્મલી આપણે જ્યારે ઊભા રહીએ તો 50% વજન અંદરની બાજુ, 50% વજન બહારની બાજુ આવે. તો જોઈન્ટમાં ઇક્વલ લોડ થાય તો જોઈન્ટ જલ્દી ન ઘસાય. પણ અગર એક જ બાજુ લોડ આવે, આ બાજુ લોડ નથી જઈ રહ્યો, તો જ્યાં લોડ પડે એ ખરાબ થઈ જાય. ભલે આ સારું રહ્યું પણ આ કમ્પ્લીટલી ખરાબ થઈ ગયું એટલે તમને કન્ટિન્યુઅસ દુખાવો આવી શકે. એટલે પગ આમ હોઈ શકે યા અમુક લોકોના પગ આમ હોય છે. સ્પેશિયલી જે લોકો બચપનથી ઓબેઝ હોય
યા હંમેશા ઓવરવેટ રહે છે ને એ લોકોના પગ આમ થઈ જાય, એ લોકોના બે નીઝ અડવા માંડે, તો એ લોકોને જોઈન્ટ બહારની બાજુથી ઘસાય, અંદરની બાજુથી ઓછા ઘસાય. અને સૌથી મોટું જે રીઝન છે જે હું વધારે એમ્ફેસાઇઝ કરીશ એ ઓવરવેટ છે. બહુ વજન વધી ગયો પછી ઓછો કરવો બહુ ડિફિકલ્ટ છે. અને પાછા જ્યારે ઓવરવેટ પેશન્ટ અમે કહીએ વેટ કમ કરો, વેટ કમ કરો. ઘણા પેશન્ટ એવા આવે છે આવીને કે સાહેબ વેટ કે બારે મેં કુછ નહીં બોલા. મતલબ એ લોકો બેચારા એટલા ડૉક્ટર પાસે ગયા હોય છે ને એ લોકો કંટાળી ગયા છે, જે ડૉક્ટર પાસે એમ જ કે વેટ કમ કરો, વેટ કમ કરો. એ કે મારાથી વજન ઓછું નથી થતું, કે હું ગાંડી છું, મારા વજન ઓછું નથી કરવો, પણ થવો બી તો જોઈએ ને. તો એક લિમિટ ક્રોસ કર્યા પછી વેટ ઓછું કરો ડિફિકલ્ટ છે. પછી બેરિયાટ્રિક સર્જરી કરવી પડે. સમજો 85-90 છે જેમાં તમને ઓલો સર્જન પણ ના પાડશે કે તમે ઓપરેશન નહીં કરાવો, તમે ટ્રાય કરો. આપણે બધી ટ્રાય કરી, ઘૂંટણ દુખે છે, ચાલી નથી શકાતું, જમવાનું ઓલરેડી ઓછું ખાઈએ છીએ પણ વજન વધે જ જાય છે. તો જ્યારે વજન વધતો હોય, તમે હેલ્થ બોર્ડમાં ક્યારે પણ સ્ક્રીનિંગ પ્રોગ્રામમાં જશો ને તો એ લોકો હંમેશા વેટ મેજર કરે છે. તમે જાઓ એટલે ખાલી પૂછી લેવાનું કે મારો વજન કેટલો હોવો જોઈએ, તમને કહી દેશે આટલું વજન હોવું જોઈએ. એટલે તમારે વજન ધ્યાનમાં રાખવાનું કે મારો વજન આનથી ઉપર ન થવો જોઈએ. એનથી ઉપર અગર થાય જાય મતલબ સમજવાનું કાંઈ ને કાંઈ ગડબડ છે. તમારાથી થાય તો તમે ડાયટમાં કંટ્રોલ કરો યા ડાયટિશિયનને મળો. 15-20 કિલો વધી ગયો પછી ઓછો કરવો બહુ ડિફિકલ્ટ છે. થાય એવું નથી પણ ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ રિડ્યુસ આફ્ટર દેટ સ્ટેજ. હવે અગર મને આર્થરાઇટિસ થઈ છે તો શું ચેન્જીસ કરી શકું? મારા યા તમારા લેવલ પર તમે શું કરી શકો? રાઈટ. ફર્સ્ટ 4 લાઇફસ્ટાઇલ મોડિફિકેશન. નીચે બેસવાનું ઓછું કરવું જોઈએ, એટલે પલાઠી વાળવાનું બંધ કરવું જોઈએ. કારણ તમે જેટલો નીને બેન્ડ કરો 90 ડિગ્રીથી આગળ પગ વળે એટલે નીમાં ડેમેજ વધે. સેકન્ડ, ઇન્ડિયન બાથરૂમમાં જેમ બેસીએ, સોરી મુખી સાહેબ, મુખી સાહેબ મને કહે છે આ રોંગ સેન્ટેન્સ બોલે છે, ઓકે. પણ જમાતમાં અમે ઘણીવાર એવું જોયું છે કે અમારી પાસે આવે, અમે કે નીચે નહીં બેસવાનું, એ પેશન્ટ જમાતખાનામાં દુઆ હોય એટલે ઉપર બેસે અને મહેમાને લેવે તો સૌથી આગળ નીચે બેસી જાય. જમાતખાનામાં ઉપર બેસે અને તમે વિન્ડોમાંથી જોતા ને તો વિન્ડોની અંદર ઘૂસી ઘૂસીને આમ સાફ સફાઈ કરતા હોય ત્યારે ઘૂંટણ નથી દુખતા, પણ જમાતખાનામાં ઘૂંટણ દુખે છે. સો જમાતખાનામાં તમારે લાસ્ટ ઓપ્શન રાખવો જોઈએ. નહીં મને બહુ તકલીફ છે તો જ તમારે જમાતખાનામાં ઉપર બેસવું છે. અધરવાઇઝ તમારે જમાતખાનામાં લાગે થોડી પલાટી ખુલ્લી રાખીને બેસો, પણ જમાતખાના ઇઝ અલગ પ્લેસ છે. તો એની માટે તમારે હોઈ શકે તો લાસ્ટ રાખવાનું કે બસ હવે મને એટલી તકલીફ છે કે મારાથી સહન નથી થતું, તો તમે ઉપર શિફ્ટ થાઓ. તમે ઘરમાં ગણી 90% તમે ઘરમાં મોડિફાઈ કરો તો 10% જમાતખાના બેસી શકો. આપણે ઘરમાં મોડિફાઈ નથી કરવું, જમાતખાનામાં જઈને મોડિફાઈ કરવું છું, રાઈટ. તો સૌથી પહેલી ચીજ પલાઠી વાળીને બેસવું ઓછું, ઇન્ડિયન બાથરૂમમાં બેસવાનું ઓછું. એટલે હવે મારા ખ્યાલથી કોઈના ઘરે ઇન્ડિયન નહીં હશે પણ કોઈના ઘરે હશે, અગર ચેન્જ કરાવો તો મારી રિક્વેસ્ટ છે તમે ઇંગ્લિશ બાથરૂમ લગાવજો, તમને બેક અને નીના પ્રોબ્લેમ ઓછા થશે. સીડી ચડતર, યંગ લોકો સીડી ચડતર કરી શકે છે, પણ મેં જોયું છે ઘણા લોકો વજન ઓછું કરવા માટે સીડી ચડતર કરે છે કે નહીં સીડી ચડવા ઉતરવાથી વજન ઓછો થાય. ચોક્કસ ઓછો થાય, પણ તમે અગર 45-50 વર્ષની એજના હોય અને તમે વજન ઓછો કરવા માટે ચડતર કરશો તો 5-10 કિલો વજન ઓછો થઈ જશે, ઘૂંટણ ખરાબ થઈ જશે, પછી રેસ્ટ કરો એ 5-10 કિલો પાછો આવી જશે. તો સીડી ચડ ઉતર કરવું ઇઝ નોટ અ ગુડ એક્સરસાઇઝ વજન ઓછો કરવા માટે. અને લાસ્ટ કોન્સ્ટન્ટ સ્ટેન્ડિંગ. તમે કિચનમાં જ્યારે ઊભા રહો છો એક ટેબલ રાખવાની હેબિટ રાખવાની, થોડા ઊભા રહો બેસી જાઓ, ઊભા રહો બેસી જાઓ. તો આ 4 જો તમે તમારા લેવલ પર કરી શકો છો. વેટ રિડક્શન આપણે ડિસ્કસ કર્યું. તમે ની સપોર્ટ પહેરી શકો છો આર્થરાઇટિસ માટે. ગરમ પાણીનો શેક, ઠંડા પાણીનો શેક એડ કરી શકો છો. ગરમ પાણી ક્યારે અને ઠંડુ પાણી ક્યારે, કે બંને કરવાના? ગરમ કરવું કે ઠંડુ કરવું? કોઈ ઇન્જરી થઈ હોય, માર વાગ્યો હોય, અચાનક દુખાવો આવી જાય તો બરફ. લાંબા ટાઈમનો દુખાવો છે એમાં તમે બરફ કરો, ગરમ પાણી કરો, ફરક નથી પડતો. અને હજુ નવી સિસ્ટમ છે કોન્ટ્રાસ્ટ બાદ, ગરમ ઠંડુ ગરમ ઠંડુ. એટલે જે લોકો એકદમ ફુરસતમાં હોય એ લોકો આ કરે, થોડું ગરમ લાગે હોય થોડું ઠંડુ લાગે. ગરમ એટલે જેને કામ ના હોય તો થોડું ગરમ એ કરે, થોડું ઠંડુ એ કરે, થોડું ટાઈમ પાસ થાય એટલે સારું લાગે લોકોને. ઓકે, સેટિસ્ફેક્શન લાગુ છે ને કાંઈ કરું છું ઘૂંટણ માટે. ઓકે, આ તમે તમારા લેવલ પર કરી શકો. ડૉક્ટર તમને કઈ રીતે હેલ્પ કરી શકે છે? ઘણી વાર हमारे पास पेशेंट आवे, हमें कहे कि सब आपको नी में आर्थराइटिस है, जॉइंट खराब हो गया. हाँ वो मेरे को मालूम है, मेरे को पेन किलर मत देना. એટલે બધાને એમ જ છે બસ પેન કિલર નહીં ખાવાનું, પણ તમારા જોઈન્ટમાં પાણી ભરાઈ ગયું છે, જોઈન્ટમાં સોજો છે,
તો જે દવા આવે એ પાણીને ઓછું કરે, સોજો ઓછો કરે. તો જ્યારે પાણી ઓછું થશે ને સોજો ઓછો થશે તો પેન તો ઓછું થવાનું છે ને. તો એમને શું લાગે, ડૉક્ટરે મને પેઇન કિલર આપે છે, અરે પણ મટશે તો સારું થશે ને. તો डॉक्टर ने એનું ડિસિઝન લેવા દો. અને તમને એવું લાગે તો मैं साहब इसमें ऐसा कौन सा दवाई है कि मेरे को जो बहुत दर्द होगा तो मैं लूँगी और जो मेरे को ज़रूरी है. ડૉક્ટરને પૂછી દો, ડૉક્ટર તમને ક્લિયર કહેશે કે ઓકે આ તમને જરૂરી છે, આ તમને જરૂર ન હોય ત્યારે તમે જરૂરી વધારે હોય ત્યારે તમે રાખી શકો છો. તમે કહેશો ને મેરે को દવાઈ નહીં चाहिए તો ડૉક્ટર મેજિક તો નથી કરવાનો ને, કાંઈ તો આપશે તો થશે ને. યા પછી ડૉક્ટર પાસે ખાલી કાઉન્સેલિંગ માટે ગયા હોય તો વાત અલગ છે, રાઈટ. એટલે ટેબ્લેટ્સ અને લુબ્રિકેશન ડૉક્ટરને કોલ લેવા દો, હી કેન ગીવ યુ મેડિસિન્સ અકોર્ડિંગલી. નીની એક્સરસાઇઝ હમણાં તમે દેખાડી, વેરી સિમ્પલ એક્સરસાઇઝ, રોજ 5 મિનિટ સવારે 5 મિનિટ સાંજે કરો, પગમાં સ્ટ્રેન્થ રહેશે. નીના ઇન્જેક્શન્સ, તમે ઇન્ડિયાની બહાર જશો ને તો ઘૂંટણના દુખાવા માટે કોઈ મેડિસિન ડિસ્પેન્સ નથી કરતું. આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા કોઈ ઓર્થોપેડિક ડૉક્ટર તમને દુખાવા માટે કહે મને પેન છે, ઓકે પેન છે પેરાસિટામોલ, એ લોકો टाइनॉल के છે, टाइनॉल लखे आपे जब पेन होगा टाइनॉल ले लीजिए, बहुत दुख रहा है एडविल ले लो, बहुत ज़्यादा दुख रहा है अलीव ले लो. ये सब ऑन फार्मेसी आपके जो उनका OTC काउंटर पे अवेलेबल है, वो कभी भी कोई टैबलेट नहीं लेंगे. लेकिन इंडिया का कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली अलग है. हम लोग आके बोले ना कि इंजेक्शन लेने का, घूंटण में इंजेक्शन, ओ माय गॉड લંગડી થઈ જઈશ, ક્યારેય નહીં ચાલી શકીશ. ઓલા આંટીએ કઢાવ્યું હતું, ઓપરેશન કરાવવું પડ્યું. અરે પણ ઓલા આંટીએ શું કામ પાણી કઢાવ્યું હતું, જોઈન્ટ ખરાબ થઈ ગયો હતો, तकलीफ વધારે હતી એટલે પાણી કઢાવ્યું, અને જોઈન્ટ ખરાબ હતું એટલે ऑपरेशन कराયું. रीज़न क्या है, नहीं उन्होंने पानी निकाला इसलिए ऑपरेशन कराया. जो जॉइंट डैमेज था वो कोई ब्लेम नहीं करता. तो अपने यहाँ पे सिस्टम थोड़ा अलग है, हम लोग उसको ब्लेम करते हैं. तो नी जॉइंट में इंजेक्शन लुब्रिकेशन के दे सकते हैं. आपके कोई अब्रॉड में कोई रिलेटिव रहेंगे उनको पूछिएगा नी में तकलीफ है तो क्या करते हैं, ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे स्ट्रेट अवे नी में चिकनाहट का इंजेक्शन देते हैं. ओके, और कुछ फ़ायदा नहीं करेगा, समझो इंजेक्शन भी काम नहीं कर रहा तो आप सर्जरी पे जा सकते हो. अभी 2 सर्जरी के ऑप्शंस अवेलेबल है. नी रिप्लेसमेंट सबने सुना रहेगा मेरे ख्याल से, जिसे पूरा घुटना चेंज करते हैं. अभी हाफ नी रिप्लेसमेंट आया है जिसमें आधा पोर्शन, मैं आपको बोला कि हमेशा एक बाजू घिसता है दूसरा अच्छा रहता है, तो अभी आधा भी चेंज कर सकते हो. आधा चेंज करने का फ़ायदा ये कि आप उससे पलाठी मार सकते हो, आप इंडियन बाथरूम में बैठने वैसा बैठ सकते हैं, आप रनिंग जॉगिंग जंपिंग या हाई लेवल की लाइफ एंजॉय कर सकते हैं. लेकिन ये ऐसे लोगों में किया जाता है जो रिजनेबली यंग है, लाइक 40 से 55 के बीच में, और बाहर का हिस्सा आपका या कोई भी जॉइंट का एक हिस्सा कम्प्लीटली नॉर्मल है. तो आधा जॉइंट ही चेंज करने में आता है, आधा जो नॉर्मल जॉइंट है उसको सेक्रीफाइस नहीं करते, उसको पार्शियल या यूनिक कॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं. और दूसरा आप सबको मालूम है जिसमें पूरा नया घुटना डालने में आता है. ये अपना पहला टॉपिक. अभी दूसरा टॉपिक है अपना ऑस्टियोपोरोसिस. भाई मैंने वहाँ पे बोला ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स, किसको आइडिया है ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स क्या है? हेल्थ बोर्ड वाले. पोरोसिस मीन्स पोर्स, पोर्स पोर्स मीन्स होल 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 होल. ये कोई पिक्चर एक्सप्लेन कर सकता है, ये ऑस्टियोपोरोसिस है. ये पिक्चर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. वो नॉर्मल आप झुकते गए, आप जमा खाने में देखिएगा ऐसे बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे, या मार्केट में आप देखिएगा लोग ऐसे झुक के चलते रहेंगे. कभी लोग इतनी हद तक झुक जाते कि ऐसे झुकते ऐसे चलते. ये ऑस्टियोपोरोसिस है. ये 100% ट्रीटेबल है. जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो 100% ट्रीटेबल नहीं है, वो प्रोग्रेस होता है, ट्रीटमेंट के बाद भी प्रोग्रेस होता है, कभी कभी फ़ायदा भी हो जाता है, और वो अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट चाहिए. आप इसमें कौन से भी स्टेज में ट्रीटमेंट कर सकते हैं. आप सीधे नहीं हो सकते अगर झुक गए तो, लेकिन आपकी हड्डी को पूरा मजबूत कर सकते हैं. इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस अर्ली स्टेज में आप डायग्नोस करो या लेट स्टेज में डायग्नोस करो, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे तो आप उसको कंप्लीटली अच्छा कर सकते हैं. ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स हड्डी कमज़ोर होना, सिंपल लैंग्वेज में. ये ऑस्टियोपोरोसिस है. पहले वाला जो पिक्चर है वो आपके बोन्स है. मैं आपको बोला ना कि हड्डियाँ जो है वो प्रोटीन से बनी हुई है, प्रोटीन का नेटवर्क रहता है और उसके ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट रहता है. अगर प्रोटीन नहीं है तो आपका आर्किटेक्चर नहीं बनेगा जिसके ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट हो सकता है. तो ये आपका नॉर्मल जो बोन है उसमें बहुत सारे ट्रेबेकुलर पैटर्न है. आपको जो जाली जाली वाली पैटर्न दिख रही है
उसमें बहुत सारे इंटरकनेक्टिंग स्ट्रेंड्स है. दूसरा जो पिक्चर है जो पूरा होल होल दिख रहा है, આ હાડકું તમારું પોલું થઈ ગયું છે, એટલે અંદરથી જે હાડકાનો જે કેન્સલસ બોન કહીએ કે જે સપોર્ટિંગ બોન હોય એ મેલ્ટ થઈ ગયું છે. આ હાડકા જલ્દી તૂટી જાય, તમે થોડુંક માર વાગ્યો હોય ને તમે પડી જાવ તો હાડકું તૂટી જાય. અને આ લોકોને ઘણીવાર કોઈ તકલીફ થાય જ નહીં, પડે અને તૂટી જાય કે બસ ખાલી આમથી જ તૂટી ગયું. એટલે ઓસ્ટિયોપોરોસિસ અમે કહીએ સાયલેન્ટ બીમારી છે. કોઈ વાર તમને ખાલી હાડકા દુખે, કાંઈ તકલીફ ન થાય, યા કોઈ વાર તમને લાગે મારી હાઇટ ઓછી થઈ રહી છે યા હું ઝૂકી રહ્યો છું. 90% ઓસ્ટિયોપોરોસિસ સાયલેન્ટ હોય છે. પડવા પછી ખબર પડે યા કે તમે ડૉક્ટર પાસે સ્ક્રીનિંગ માટે જાઓ તો તમે એની ઇન્ફોર્મેશન લઈ શકો છો. આની માટે એક ટેસ્ટ આવે, BMD ડેક્ઝા સ્કેન કહેવાય, જે યુઝ્યુઅલી 45 પછી લેડીઝમાં અને 50 યર્સ પછી જેન્ટ્સમાં એકવાર ચોક્કસ કરવી જોઈએ, તો તમને ખબર પડે હું ઓસ્ટિયોપોરોસિસનું પેશન્ટ છું કે નહીં. કારણ ઓસ્ટિયોપોરોસિસ અગર નથી તો વર્ષો સુધી તમે હેલ્ધી રહેવાના. એ આજે નથી ને કાલે આવી જાય એવું નથી. હાર્ટનું કેવું છે, આજે નથી 6 મહિનામાં આવી શકે. હાડકાનું એવું નથી, અગર આજે ઓસ્ટિયોપોરોસિસ નથી તો એને આવતા અમુક વર્ષો લાગશે. આના માટે પણ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ હાઈ પ્રોટીન ડાયટ, હાઈ વિટામિન ડી અને હાઈ કેલ્શિયમ. એટલે હાડકા માટે સિમ્પલ 3 ચીજ યાદ રાખવાની, કેલ્શિયમ, વિટામિન ડી અને પ્રોટીન. આની ટ્રીટમેન્ટ અવેલેબલ છે, જે ટેબ્લેટના ફોર્મમાં આવે, સ્પ્રેના ફોર્મમાં આવે જે તમારે નાકથી લેવાનો હોય, ટેબ્લેટ્સ પણ, ઇન્જેક્શન્સ, અને અમુક ઇન્જેક્શન આવે જે તમારે 2-3 મહિના સુધી તમારે તમારી જાતે લઈ શકો એવા ઇન્જેક્શન આવે જે તમારા હાડકાને મજબૂતી આપી શકે. અમે આને કહીએ છીએ 100% ટ્રીટેબલ ડિઝીઝ. એટલે આની પાછળ ચોક્કસ ટાઈમ નીકાળીને ટ્રીટમેન્ટ કરાવવી જોઈએ. હવે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ લાસ્ટ ટોપિક આપણો, ડિસ્ક પેઇન, સર્વાઇકલ સ્પોન્ડિલોસિસ, લંબાર સ્પોન્ડિલોસિસ, સ્લીપ ડિસ્ક, સાયાટિકા, આ બધાએ સાંભળ્યું હશે, રાઈટ. આજે આપણે એક એક્સપ્લેનેશન લઈ લઈએ, એકદમ સિમ્પલ એક્સપ્લેનેશન છે. તમને જે યલોમાં દેખાય છે એ આપણા બધા હાડકા છે. એના વચ્ચે જે બ્લુ શેડમાં તમને દેખાય છે એ મણકાની ડિસ્ક કહીએ કે આપણે ગાદી કહીએ, ટીશ્યુ કહીએ, એ છે. જેમ જેમ તમે મણકાને લોડ આપો, આ ડિસ્ક એક શોક એબ્ઝોર્બિંગ સ્ટ્રક્ચર છે. આપણે કેમ ગાડીમાં સસ્પેન્શન આવે ને, અગર આ ડિસ્ક ન હોત તો માણસની કમર ખરાબ જલ્દી થઈ જાય. તો ડિસ્ક તમને શોક એબ્ઝોર્બિંગ ફંક્શન આપે, પણ અગર તમે ગાડીને ઓવરલોડ કરો તો તમારા શોકઅપ્સ ખરાબ થઈ જાય. તો એવી રીતે અગર તમારો બોડીનું વજન વધારે હોય યા તમે બહુ જ ઝૂકીને કામ કરતા હોય, કોઈ ઇન્જરી થઈ તો તમારી ડિસ્ક પહેલાં ખરાબ થાય. અમે કહીએ ડિસ્ક સુકાઈ જાય, કે ડિસ્કનું જે પાણી છે ને એ ઓછું થઈ જાય. જ્યારે ડિસ્કનું પાણી ઓછું થઈ જાય તો તમને બેક પેઇન આવે, તમને કમર દુખાય, સવારે ઉઠો તો કમર અકળાઈ ગઈ હોય, આમ ઝૂકીને કામ કર્યું તો આમ કરીને ઊભા થવું પડે. આમાંથી ઘણા લોકો હશે જે હમણાં લાંબો ટાઈમ બેસે ને 1 કલાક અને પછી ઊભા થશે તો કમર પકડીને ઊભા થશે. જે લોકોને પગમાં ખેંચાવ નથી, ફક્ત કમર દુખાય છે, હોઈ શકે એ લોકોને ડિસ્કનો પ્રોબ્લેમ હોય, તમારી ડિસ્ક થોડી ડેમેજ થઈ છે. આ સ્ટેજમાં તમે અગર રેગ્યુલર મેન્ટેન કરો અને રેગ્યુલર ટ્રીટમેન્ટ કરો 100% તમે નોર્મલ થઈ શકો છો. એના પછીનો સેકન્ડ સ્ટેજ, તમે ડિસ્કને વધારે લોડ આપો, અચાનક ઝટકો આવી ગયો તો ડિસ્ક ખરાબ નથી થઈ, પણ ડિસ્કની અંદર એક લિક્વિડ આવે, એ લિક્વિડ આમ બલૂનની જેમ બહાર પુશ થઈ જાય. આને કહેવાય ડિસ્ક બલ્જ, એટલે ગાદી બહાર ખસી ગઈ. આ ખાલી બલ્જ છે, કમ્પ્લીટ નથી ખસી. આમાં પણ અગર તમે પ્રોપર રેસ્ટ કરો, ફિઝિયોથેરાપી કરો, દવા લો તો તમારો ડિસ્ક બલ્જ પણ નોર્મલ થઈ શકે છે. મીન્સ આ 100% નોર્મલ થવાવાળી બીમારી છે. અગર બહુ પ્રોબ્લેમ વધે તો તમારી ઓલી જે ગાદી બહાર ખસી હતી આખી સ્લીપ થઈને બહાર આવી જાય, અને પાછળ તમને જે વ્હાઇટ એરિયા દેખાય છે ત્યાંથી તમારી નસો બધી પગમાં ઉતરે, અને આ દુખાવો જે પહેલાં કમરમાં હતો હવે ધીરે તમને પગમાં જવા માંડે. એટલે જે લોકોને પગમાં દુખાવો થાય છે તમારે સમજી જવાનું કે તમારા મણકામાં ક્યાંય ને ક્યાંય નસ દબાય છે, કોઈ પણ કારણ હોઈ શકે. એટલે આ ડિસ્ક અગર બહાર આવી જાય તો તમારી નસને પ્રેસ કરે, ઓછું પ્રેસ કરે, દવાથી, રેસ્ટથી, ઇન્જેક્શન તમે સારા થઈ શકો. ઘણીવાર એટલી બધી ડિસ્ક ખસી જાય કે તમારી નસને ડેમેજ કરી નાખે, તમારો પગ શૂન્ય થઈ જાય યા પેરાલિસિસ થઈ જાય. ઘણા લોકોને બાથરૂમ પેશાબની પણ ખબર ન પડે, એ લોકોને આની માટે પછી સર્જરી કરાવવાની જરૂરત પડે. અને અમુક સેફ અને લકી માણસો હોય જે લોકોની ડિસ્ક ધીરે 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 દબાઈ જાય, ડિસ્ક ડેમેજ થઈ જાય, પણ એ લોકોને એક પણ પૈસાનો દુખાવો ન હોય. આ લોકોને ખાલી સવારે ઉઠવામાં એમ લાગે સવારે ઉઠું તો મને જામ થઈ ગયું છે. સવારે ઉઠે, થોડી ચાલફર કરે, એક્સરસાઇઝ કરે
અને બપોરે સાંજે એકદમ રેડી, એ લોકોને કોઈ પ્રોબ્લેમ ન હોઈ શકે. આ પ્રોબ્લેમ અવોઇડ કરવા માટે 4 ચીજો: કોન્સ્ટન્ટ બેસવાનું અવોઇડ કરવાનું, આગળ ઝૂકીને વજનનું કામ નહીં કરવાનું, સિટિંગ પોસ્ચર ચેન્જ કરવાનું, અને ફોરવર્ડ બેન્ડિંગ જ્યાં તમને જરૂરી હોય ત્યાં જ કરો. જે ઇન્જરી છે એ આપણા કંટ્રોલમાં નથી, ટ્રોમા આપણા કંટ્રોલમાં નથી, રાઈટ. જે તમે હજી એક ચીજ કરી શકો છો એ છે તમારો વેટ ઓછો કરવો. સો સ્પોન્ડિલોસિસમાં આઈધર સર્વાઇકલ સ્પોન્ડિલોસિસ હોય યા લંબાર સ્પોન્ડિલોસિસ, સર્વાઇકલ ડિસ્ક પેન યા લંબાર ડિસ્ક પેન શરૂ થાય ડોકથી હાથમાં ઉતરે, આ શરૂ થાય બેકથી અને પગમાં ઉતરે. તો જ્યારે ઘસારો થઈ જાય, જે લાસ્ટ સ્ટેજ હતું, જે લાસ્ટ ઇમેજ છે નીચે, એને અમે કહીએ સ્પોન્ડિલોસિસ. સ્પોન્ડિલોસિસ એટલે બધું ઘસાઈ ગયું છે. ઓકે, એટલે ઘણા લોકો અમારી પાસે આવે, યંગ પે આવ્યા, 20-22 વર્ષના લેડીઝ આવ્યા હોય કે છોકરા આવ્યા હોય, सर मेरे को ना सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया है, मेरे को लंबार स्पॉन्डिलोसिस हो गया है. अरे 20 વર્ષનો છે, તને ક્યાંથી સ્પોન્ડિલોસિસ થઈ શકે, રાઈટ? ટ્રીટમેન્ટ, રેસ્ટ, પ્રોપર મેડિકેશન, ફિઝિયોથેરાપી, અને ઘણીવાર તમે એપ્રુરલ ઇન્જેક્શન આપે છે, મણકામાં એક ઇન્જેક્શન આપે જેનાથી તમારો દુખાવો મટી જાય. એ બીમારીને સોલ્વ ન કરે, પણ માર્જિનલ કેસમાં જ્યાં ઓપરેશનની જરૂરત હોય તો અમુક પેશન્ટનું ઓપરેશન આ ઇન્જેક્શનથી બચી શકે છે. અને લાસ્ટ ઇઝ અ સર્જરી. ટેક હોમ મેસેજ. એટલે અત્યાર સુધી સૂઈ ગયા તો વાંધો નથી, હવે જાગશો અને આટલું સાંભળશો તો એ આપણું કામ પૂરું થઈ જશે. 5 ચીજો, 5 પોઈન્ટ. હાઈ કેલ્શિયમ, વિટામિન ડી, હાઈ પ્રોટીન ડાયટ. ફર્સ્ટ, સ્ટ્રિક્ટ વેટ મોનિટરિંગ. વધી ગયો પછી ઓછો થવો બિગ ટાસ્ક છે, એટલે વેટ મોનિટર કરો. રેગ્યુલર વેટ બેરિંગ એક્સરસાઇઝ. સાયકલિંગ ઇઝ ગુડ, સ્વિમિંગ ઇઝ ગુડ, પણ વેટ બેરિંગ એમાં વોકિંગ આવી શકે, બ્રિસ્ક વોકિંગ આવી શકે, લાઇટ જોગિંગ આવી શકે, રનિંગ આવી શકે. તમારી એજના હિસાબે કોઈ પણ વેટ બેરિંગ એક્સરસાઇઝ કરવી જરૂરી છે. લાઇફસ્ટાઇલ મોડિફિકેશન. જેમ જેમ તમારી ઉંમર થાય લાઈફને મોડિફાય કરો. નીચે ઉઠવું, બેસવું, ઝૂકીને કોન્સ્ટન્ટ કામ કરવું, હેવી કામ કરવું, લોંગ ટાઈમ સ્ટેન્ડિંગ, આ તમારી જેમ એજ થાય તમારે મોડિફાય કરવા જોઈએ. અને લાસ્ટ, જ્યારે પણ એવું લાગે ભાઈ તકલીફ કન્ટિન્યુઅસ રહી છે, મારા બેઝિક મોડિફિકેશનથી મને ફરક નથી પડી રહ્યો, ઘરની દવાથી મને ફરક નથી પડી રહ્યો, તો બહુ ખેંચવું નહીં જોઈએ. કોઈ એક્સપર્ટની યા ડૉક્ટરની એડવાઇસ લઈ જોઈએ. તો તમે અગર રાઈટ ટાઈમ પર ટ્રીટમેન્ટ કરાવો તો આ બીમારીને તમે વધતા રોકી શકો છો. અને બીમારી નહીં વધે તો આ બીમારીમાંથી તમે 95 to 100% એને સોલ્વ કરી શકો છો. થેન્ક યુ. જમાતના ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ હતા, તમે ટર્ન બાય ટર્ન આન્સર કરશું. મેં તમને એક બેઝિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓર્થોપેડિકની જે નોર્મલ બીમારી છે એના બારામાં આપી છે. તો અગર તમને આમાંથી એક ક્વેશ્ચનના આન્સર મળી ગયા હોય તો આપણે રિપીટ નહીં કરશું. ઓકે, સો જે લોકોને કાંઈ પૂછવું હોય તો હેલ્પ બોર્ડના મેમ્બર છે, તમારા ક્વેશ્ચન તમને આપી શકો છો. થેન્ક યુ ડૉક્ટર અમીન મોમીન, તમે ઘણી જ સારી રીતે જમાતને સમજાવ્યું છે. પણ અમારી જમાતના ઘણા બધા સવાલ છે જેને ડે ટુ ડે એ લોકોને પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરે છે, તો આપણે થોડીક વારમાં શરૂ કરશું. પણ હું અમારા નોર્થ મુંબઈ કાઉન્સિલના પ્રેસિડેન્ટ સાહેબ આવ્યા છે, એમને ઓનર કરાવીશ. તો હું મારા વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયાના મેમ્બર કરિશ્મા, ડૉક્ટર કરિશ્મા રૂપાણીને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે અમારા નોર્થ મુંબઈ કાઉન્સિલના પ્રેસિડેન્ટને ઓનર કરે. પ્રેસિડેન્ટ સાહેબ. हाँ हाँ ज़रूर. તેઓ પોતાનો કિંમતી સમય દઈને આપણી જમાતમાં આવ્યા છે. જમાત માટે તેઓ બહુ જ ચિંતિત છે અને ઘડી ઘડી અમને રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ કે મેરી જમાત કે लिए બાયમાં अच्छे अच्छे પ્રોગ્રામ્સ કરો. થેન્ક યુ પ્રેસિડેન્ટ સાહેબ. હવે હું અમારા હેડક્વાર્ટર
દહીસર જમાતખાનાના મુખી સાહેબને રિક્વેસ્ટ કરીશ અને અમારી બાઈમાં નતાશા બાઈમાને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે તેઓ આવી અને મુખી સાહેબને ઓનર કરે. દહીસર મુખી સાહેબ. થેન્ક યુ મુખી સાહેબ. હવે જમાતે જે ડ્રોપ બોક્સમાં ક્વેશ્ચન્સ નાખ્યા હતા તે આપણે ક્લિયર કરશું અને જો તો પણ તમને સેટિસ્ફેક્શન ન મળે તો તમે એક ચીઠમાં લખી અને અમારા વોલેન્ટિયર્સને આપી શકો છો તો આપણે એ પણ કવર કરશું. ડૉક્ટર સાહેબ, સૌથી પહેલો સવાલ છે, हम हमारी यंग एज में बोन्स को कैसे हेल्दी रख सकते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया कि बोन में यंग एज में जितना इन्वेस्ट करेंगे 45-50 ईयर्स के बाद आप वो बेनिफिट अर्न करेंगे. तो हाई प्रोटीन, हाई कैल्शियम, विटामिन डी के डाइट्स और रेगुलर एक्सरसाइजेस. इम्पैक्ट एक्सरसाइज ज़रूरी है. अगर इम्पैक्ट एक्सरसाइज करेंगे तो आपके बोन स्ट्रांग हो जाएंगे. 45-50 ईयर्स के बाद आप इम्पैक्ट एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उससे बोन डैमेज हो सकते हैं. नहीं, लेकिन यंग एज से ही हम कैल्शियम बच्चे को देने का स्टार्ट करें तो वो बॉडी में स्टोर होवे और क्या वो हमारी बाद में 40+, 50+ में वो कैल्शियम यूटिलाइज कर सकते हैं? हाँ, अगर आप यंग एज में कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन बढ़ा रहे हो और आप एक्सरसाइज कर रहे हो, सिर्फ बॉडी में बोन ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको आप जितना स्टिमुलस देंगे उतना मजबूत होगा. अगर दो इंसान हैं 30 से 40 में ग्रो कर रहे हैं, एक इंसान रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है और कैल्शियम खा रहा है, दूसरा वैसा ही इंसान है जो उतना ही कैल्शियम खा रहा है, प्रोटीन खा रहा है, लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा. सो जो बंदा एक्सरसाइज कर रहा है उसके बोन ज़्यादा स्ट्रांग हो गए. सिर्फ डाइट से फ़र्क नहीं पड़ता, बोन को स्टिमुलस चाहिए, बोन में इम्पैक्ट आना चाहिए. जब इम्पैक्ट आएगा सो बोन की रिक्वायरमेंट्स बढ़ेगी. जब बोन की रिक्वायरमेंट्स बढ़ेगी तभी ही आप जो कैल्शियम, विटामिन डी या प्रोटीन ले रहे हो वो जाके बोन में डिपॉजिट होगा. सिर्फ खाने से इतना बेनिफिट नहीं होगा. सो डाइट प्लस वेट बेरिंग एक्सरसाइज, ये कॉम्बिनेशन ज़रूरी है. आपने बहुत सारा एक्सरसाइज किया, आपके बोन स्ट्रांग होते हैं. हम लोग जब ये ऑपरेशन करते हैं ना, कभी कभी ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि जिनके बोन्स में हमको स्क्रू डालना पड़ता है ना तो हाथ दुखता है शाम को. और ऐसे बोन्स भी आते, तुमने ड्रिल मशीन लगाया, जुप जुप ऐसा होल बन जाता है. तो इतना ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है किसी किसी बोन में. तो किसके बोन इतने स्ट्रांग होते हैं, जो लोग लेबरर्स है, जो लोग हैवी मैनुअल वर्कर है, ना बेचारे कभी प्रोटीन खाते हैं, ना कैल्शियम, ना विटामिन लेते हैं, लेकिन नॉर्मल डाइट में से भी एक्सरसाइज की वजह से जितना उनको कैल्शियम, प्रोटीन जो खा रहे, कम भी खा रहे, लेकिन बोन को मजबूत होने का स्टिमुलस इतना ज़्यादा है कि वो थोड़ा बहुत कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन भी बॉडी में यूटिलाइज होके उनके बोन को स्ट्रांग कर रहा है. सो सिर्फ खाने से स्ट्रांग नहीं होंगे, खाने के साथ इम्पैक्ट एक्सरसाइज ज़रूरी है. क्या फ्लू, डेंगू या कोई वायरल फीवर होता है तो उससे एथराइटिस होने की शक्यता है? उससे आर्थराइटिस नहीं होगा, उससे आर्थरालजिया होगा. मीन्स वो बुखार के बाद आपको जॉइंट पेन होता है. कभी कभी वो 3 महीना रहता है, कभी 6 महीना रहता है, कभी 2-4 साल तक भी रहता है, लेकिन आप वो दवाई करेंगे तो वो चला जाएगा. ये आर्थराइटिस नहीं है, ये 100% चला जाएगा, उसकी गारंटी है. आर्थराइटिस जो है वो बीमारी है, वो जाती नहीं है, वो कम ज़्यादा लेकिन चलता रहता है. सो इसको आर्थरालजिया बोलेंगे, ये आर्थराइटिस नहीं है. डिलीवरी के टाइम पे, सी सेक्शन के टाइम पे जो बैक पेन में इंजेक्शन लेने में आता है उससे फ्यूचर में बैक पेन होने का चांसेस है क्या? ये क्वेश्चन वापस आया, मतलब ऐसा लग रहा है जमात काफ़ी सो रही थी. मतलब ये तो पहली स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि वो इंजेक्शन देने से बैक पेन नहीं होता, लेकिन यूजुअली प्रेगनेंसी के बाद बैक पेन बहुत कॉमन है. बस अपने यहाँ पे ऐसा ट्रेंड है कि प्रेग्नेंट हो गए तो उसके बाद खूब खाओ पियो और किसको एक्सरसाइज नहीं करनी. बिकॉज सी सेक्शन हुआ है तो वो लेडी 3 महीने तक बेड पे से हिलती भी नहीं है. बोला नहीं नहीं सी सेक्शन हुआ, टाके फट जाएंगे. अरे वो टाके 4-6 हफ्ते में भर जाते हैं. आपको हीरोइंस को देखिएगा जिसकी डिलीवरी हो गई है, उन्होंने भी बेबीज़ को बर्थ दिया है, वो अभी भी ऐसी स्लिम ट्रिम दिखती है कि जैसे कि बेबी को बर्थ ही नहीं दिया है.
और अपने आप गुजराती लोग देखेंगे या अपने मुंह में देखेंगे कि एक डिलीवरी उसके बाद तो पूरा शेप ही चेंज हो जाएगा। वो सी सेक्शन कराया मीन्स ओ माय गॉड कितना बड़ा ऑपरेशन हो गया, अभी तो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। उल्टा प्रेगनेंसी के बाद आपको बहुत सारी एक्सरसाइज करनी चाहिए, बिकॉज प्रेगनेंसी में आपके बैक के मसल्स नेचुरली वीक होते हैं। वो सिस्टम है ऊपर वाले की कि आपकी बैक कमज़ोर हो जाएगी ताकि आप बैक के लिगामेंट्स वीक होंगे और आपकी बेबी डिलीवर हो सके। लेकिन उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आपको बैक पेन होने के चांसेस है। वो आपके मसल वीकनेस है, वो इंजेक्शन की वजह से नहीं है। क्या एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर की ट्रीटमेंट करना सही है? इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? आप रॉन्ग आदमी को पूछ रहे हो एक्चुअली। जमात का क्वेश्चन है, जमात ये सब ट्रीटमेंट करने जाते हैं ना। अब ये डिफिकल्ट है इसको आंसर करना। मतलब ऐसा है कि मैं आपको बोलूँगा भाई मैं घुटने का ऑपरेशन कैसे करते हैं, तो आप क्या आंसर करेंगे ना, ये वैसा है। एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर एक थेरेपी है, ऐसा नहीं है, वो अप्रूव्ड थेरेपी भी है, काफ़ी डिजीज़ में हेल्प कर सकता है। तो जहाँ आपको लगता है कि आपने एलोपैथी किया या डॉक्टर को कंसल्ट किया, आपको बेनिफिट नहीं हो रहा तो आप करा सकते हैं। नुकसान मेरे ख्याल से कोई नहीं है, लेकिन बेनिफिट कितना होगा मेरे को उसका डिटेल आइडिया नहीं है। लेकिन वो थेरेपीज़ है, वो अप्रूव्ड थेरेपी है एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर। तो आपको किसी को लगता है कि आपने किसी ने एक्यूप्रेशर कराया, एक्यूपंक्चर कराया और आपको बेनिफिट हो रहा है, तो करने में नुकसान नहीं है, कोई हार्म नहीं है। सिर्फ इतना ख्याल रखने का, और आप एक्यूपंक्चर करा रहे हो तो उसमें लोग बॉडी में नीडल्स डालते हैं, अच्छा नसों में नीडल डालते हैं, वो नीडल स्टराइल होनी चाहिए। वो एक पर्सन का दूसरे पर्सन में यूज़ नहीं होना चाहिए। मोस्टली सब लोग स्टराइल ही यूज़ करते हैं, लेकिन वो एक कंसर्न सिर्फ रहता है, बस किसी को अगर HIV एड्स है अब वही नीडल आपके ऊपर यूज़ होती है तो आपको बीमारी आने का चांस रहता है। सर आपने साइटिका के बारे में तो बताएं, लेकिन अगर जो साइटिका है तो उसमें क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए? जब भी बहुत सारा पेन है वो टाइम पे आपको रेस्ट करना चाहिए। जैसे पेन थोड़ा कम हो जाएगा तो आप कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। अभी बहुत सारा फिजियोथेरेपी में एडवांस हुआ है, मैकेंजी वगैरह बहुत सारे मोडलिटीज़ है जो आप थोड़ा बहुत पेन में भी कर सकते हैं, और वो एक्सरसाइज से आपका पेन कम हो सकता है। लेकिन वो टाइम पे आप खुद से नहीं कर सकते, बिकॉज ये बहुत ऐसा टाइम है कि जहाँ आपने जरा भी गड़बड़ कर दी आपकी डिस्क पूरी स्लिप होकर बाहर आ जाएगी। तो ये टाइम पर आपको कोई प्रोफेशनल की एडवाइस लेनी चाहिए, और बहुत पेन के टाइम पे बिना प्रोफेशनल के खुद से एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। मतलब कि फिजियोथेरेपिस्ट के उसमें के सामने ही करना चाहिए, अपने आप से एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। સાયટિકામાં તમે તમારા હિસાબથી એક્સરસાઇઝ ન કરવી જોઈએ, ફિઝિયોથેરાપિસ્ટને કન્સલ્ટ કરીને કરવું જોઈએ। અગર બહુ જૂની સાયટિકા છે, તમને ખબર છે મને થોડું દુખે છે, દુખો આવે છે જાય છે આવે છે જાય છે, એ ટાઈમ પર તમે એક્સરસાઇઝ કોઈ ફિઝિયોથેરાપી પાસે શીખીને કરી શકો છો। પણ બહુ સખત દુખાવો હોય, બહુ પેઇનફુલ કન્ડિશન હોય, એમાં એક્સરસાઇઝનો રોલ તમારા મેળે કરવું ઓછું છે। सर क्या एसिडिटी पेशेंट या थायराइड पेशेंट को बोन्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं? एसिडिटी का और बोन्स का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन अगर आप एसिडिटी के लिए एंटासिड्स बहुत ज़्यादा लेते हो, कोई लोग बहुत सेंसिटिव रहते हैं, बोला मेरे को एसिडिटी 2400 घंटा रहती है, अभी उन्होंने इतनी सारी गोलियां खाई थी कि उनको ऐसा लगे बस मैं एसिडिटी की गोली के बिना जिंदा रह ही नहीं सकती, वो सुबह उठते हैं और सबसे पहले एसिडिटी की गोली खाते हैं। तो आप जितना एसिडिटी की गोली खाएंगे आपके पेट में एसिड कम हो जाएगा, आपका दर्द कम हो जाएगा पेट का, लेकिन जो आप कैल्शियम खा रहे हो वो कैल्शियम को ब्लड में जाने के लिए आपके पेट में एसिड होना ज़रूरी है। अगर मैंने एसिडिटी की बहुत सारी गोली खाई, मेरे पेट में एसिड है ही नहीं, तो मेरा जो कैल्शियम होगा वो मेरे बॉडी के मेरे ब्लड में नहीं जाएगा। इसलिए डायरेक्ट रिलेशन नहीं है एसिडिटी का, लेकिन एसिडिटी की गोली का बोन्स की स्ट्रेंथ पे रिलेशन है। मतलब कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होएगा? हाँ जी। મારા નીમાં એટલે ગોઠણમાં દુખાવો છે, એક ડૉક્ટરે કહ્યું કે ની રિપ્લેસમેન્ટ કરાવી દો, બીજો ડૉક્ટર કહે છે કે રિપ્લેસમેન્ટની જરૂર નથી, તો મારે કોનું સાંભળવું અને કોના ઉપર ભરોસો કરવો? सी एकदम सिंपल છે, ઓકે लॉजिक છે। કોઈ ડૉક્ટર કહે છે ઓપરેશન જરૂરત નથી, ઠીક છે સાહેબ ઠીક કરી આપો, બરાબર ને? શું કામ દિમાગ લગાવવાનું? અગર કોઈ કહેતું હોય ઓપરેશન વગર સારું થાય તો એની પાસે જવાનું, જે ઓપરેશન માટે શું કામ એની પાસે ઓપરેશન કરવાનું? પણ એને કહે ને સાહેબ ઠીક કરી આપશો ને, તો ક્યાં કરી આપીશ, એક્સિલન્ટ, તારી પાસે જ આવીશ।
अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर हो जाता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए और कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? सिर्फ सबसे पहले ये डायग्नोज होना चाहिए कि ये फ्रोजन शोल्डर है। बिकॉज हम लोग ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखते हैं जो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाके आए और ऐसा डायग्नोज हो गया कि ये फ्रोजन शोल्डर है और वो बेचारे एक्सरसाइज करते रहते। जबकि बहुत बार ऐसा देखने में कि आप जब उनको एग्जामिन करते तो मालूम चलता है कि उनको फ्रोजन शोल्डर नहीं है, उनकी कोई नस डैमेज हो गई है, मसल खराब हो गया है और आप उसी का एक्सरसाइज कर बोलते अच्छा ही नहीं हो रहा। अरे मसल फट चुका है अंदर, आपको उसको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, आपको आराम करना चाहिए। तो ऐसा पहले डायग्नोज होना बहुत जरूरी है कि फ्रोजन शोल्डर है कि नहीं है। बाद में आपको कोई प्रॉपर फिजियो से करना चाहिए। खुद से इनिशियल स्टेज में एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। आप 2-4 दिन फिजियो के पास जाओ, सीख लो, फिर घर पे करो। आप बोलेंगे मैं हर एक्सरसाइज घर पे से शुरू करूं, कोई बीमारी में पॉसिबल नहीं है। आप सलाह ले लो, बाद में आपको घर पे करना है, आपको रोज फिजियो के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या विटामिन और कैल्शियम की टैबलेट लेने से या उसका ओवरडोज लेने से बोन्स में क्रैक हो सकते हैं? बोन में क्रैक ब्रिटल्स। मतलब यहाँ मैं जब से आया तब से गा रहा हूँ, कैल्शियम खाओ, विटामिन खाओ, प्रोटीन खाओ, बोन मजबूत होगा, मजबूत लेकिन होगा। ओवरडोज लेने से अगर आप कैल्शियम की गोली खाएंगे ना, आप कितना भी गोली खाए वो ओवरडोज नहीं हो सकता। बॉडी में ऊपर वाला सिस्टम बना है, आप ज़्यादा खाएंगे तो वॉश आउट होता जाएगा। विटामिन डी का ओवरडोज हो सकता है। कब हो सकता है? अगर आप उसके इंजेक्शंस लेते हो। तो बहुत सारे डॉक्टर्स विटामिन डी के इंजेक्शन भी रेकमेंड करते हैं, उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका नुकसान है। अगर आपको कंफर्म नहीं है कि आपको विटामिन डी की कमी है और आप अगर विटामिन डी इंजेक्शन फॉर्म में लेंगे तो आपका विटामिन डी ज़्यादा हो सकता है। सो हाइपर विटामिनोसिस डी ऐसी एक बीमारी है जो लोग का विटामिन डी बढ़ जाता है, उससे कभी कभी ब्रेन में इश्यू आते हैं। अपना एक इस्माइली पेशेंट हाइपर विटामिनोसिस डी से कोमा में जाके एक्सपायर हुआ है। आई नो द एंटायर फैमिली। सो विटामिन डी एक्सेस इंजेक्टेबल फॉर्म में इज नॉट गुड। सर पेन और डिप्रेशन का क्या रिलेशन है, उसका क्या लिंक है? डिप्रेशन है उसको सब जगह पेन हो सकता है, आप बोलो और उसको पेन है। ओके, डायरेक्ट आपके पास पेशेंट्स आते होंगे ना कि मुझे डिप्रेशन हो गया, मतलब पेन दे कैन नॉट कंट्रोल इट। सी कैसा है, डिप्रेशन वाले पेशेंट पहले से बेचारे लो फील करते हैं, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, और जब उनको कोई भी माइनर प्रॉब्लम रहती है जैसे कि बैक पेन था या नी पेन था, सो उनका दिमाग उसी में रहता है। सो ऐसा डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है कि मेरे को डिप्रेशन होगा तो मेरे को ऑर्थोपेडिक इश्यू हो जाएंगे, नहीं। डिप्रेशन से डायरेक्ट कोई ऑर्थोपेडिक बीमारी नहीं हो सकती, लेकिन वो लोग बीमारी के बारे में सोच सोच के डिप्रेशन को और बढ़ा सकते हैं, या बहुत सारा कंसर्न लेके बैठे रहेंगे तो आपकी बीमारी बढ़ेगी। अदरवाइज डिप्रेशन से ऑर्थोपेडिक बीमारी नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन डिप्रेशन है और ऑर्थोपेडिक बीमारी साथ में है तो वो लोग वो बीमारी को बहुत बड़ा फील कर सकते हैं। હું જમાતખાનામાં અડધી કલાકથી વધારે બેસું છું તો મારા પગમાં ખાલી ચડી જાય છે અથવા તો નમ થઈ જાય છે, તો કાંઈ મારે જોઈન્ટ પેનનો પ્રોબ્લેમ છે? आप जब भी कोई भी हार्ड सरफेस पे बैठेंगे ना और पैर सुन्न हो गए और आप उठेंगे, अगर पैर आगे पीछे किया, 2-3 मिनट ऊपर नीचे किया और ठीक हो गया, ये नॉर्मल है। बस आप जब बैठते हैं तो यहाँ पे 2 नसें रहती है, वो हार्ड सरफेस पे बैठने से दब जाएगी। आप पैर आगे पीछे करें तो उसमें खून वापस जाता है और वो नॉर्मल हो जाता है। उसको बोलते हैं पैर सो गया, पैर सोना, आपने कभी सुना रहेगा। तो ये नॉर्मल है, ये बीमारी नहीं है। लेकिन आपको लगता है मैं चल रही हूँ और मेरा पैर सुन्न हो रहा है, या मैं खड़े रहती हूँ और पैर सुन्न हो गए, ये बीमारी है। हिप बोन एथराइटिस क्या होता है? हिप बोन एथराइटिस। हिप बोन आर्थराइटिस जैसे घुटने में आर्थराइटिस होता है, सेम आर्थराइटिस आपको हिप में भी हो सकता है। मतलब जैसे यहाँ पे घिस गया, ये भी घिस जाता है। इसको ज़्यादा तकलीफ हो गई, इसको रिप्लेस करते हैं, ये ज़्यादा तकलीफ हो, इसको रिप्लेस करते हैं। तो ये भी हड्डी घिस गया, जैसे कि अंगूठा घिसता है, नी घिसता है, वैसा हिप बोन में भी आर्थराइटिस सेम लेवल से हो सकता है। हमारी जमात को कैल्शियम की कोई अच्छी सी सप्लीमेंट बताओ, सजेस्ट करो, जो थोड़ी चीप भी होवे, और वो कैल्शियम की टैबलेट कितने टाइम में, कितने गैप में लेनी चाहिए, और उसका साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, वो सब क्लियर करके बताओ।
सबने कंसल्टिंग पे किया है कि नहीं बाहर? कंसल्टिंग पे किया तो मैं लिख के दे सकता हूँ। जैसे बहुत सारी कैल्शियम की टैबलेट अवेलेबल है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड या ऐसा कोई एक पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं है जो पूरी जमात खा सकती है। किसको डायबिटीज़ है, किसको ब्लड प्रेशर है, किसको स्टोन है, किसको एसिडिटी है, तो हर इंडिविजुअल की अलग कैल्शियम की टैबलेट रहती है। कैल्शियम की टैबलेट के कम से कम 50 फॉर्मुलेशन है, तो अपने कहता है कैल्शियम की टैबलेट, ऐसा नहीं है। कोई कैल्शियम की टैबलेट आप लंबा टाइम ले सकते हैं, कोई कैल्शियम टैबलेट आप लंबा टाइम नहीं ले सकते, कोई कैल्शियम टैबलेट लंबा टाइम लेने से आपको स्टोन हो सकता है, कोई कैल्शियम आप जिंदगी पर खाओ कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो यंग एज में होता है, वो बड़ी एज में होता है, ऐसा होता है। तो सबसे सिंपल, आपके बाजू में कोई नॉर्मल डॉक्टर रहेंगे सर्दी बुखार के, उनको बोलेगा मेरे को एक कैल्शियम की गोली लिख के दो, वो आपका हिस्ट्री लेंगे, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, विटामिन डी वगैरह के बारे में 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे और आपको एक अप्रोप्रिएट गोली लिख दे सकते हैं। क्या कैल्शियम बढ़ने से पैराथायराइड का ऑपरेशन करवाना पड़ता है? कैल्शियम बढ़ने से पैराथायराइड का ऑपरेशन कभी भी नहीं कराना पड़ेगा। पैराथायराइड में प्रॉब्लम है तो कैल्शियम बढ़ेगा, तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मतलब पैराथायराइड में प्रॉब्लम है तो आप ऑपरेशन कराएंगे, आपका कैल्शियम बढ़ा हुआ है उसकी वजह से पैराथायराइड में प्रॉब्लम कभी भी नहीं आ सकता। सर्जरी हो गया है फिर भी बढ़ रहा है? अगर यूजुअली आपने नोट किया रहेगा, जब पैराथायराइड का सर्जरी करते हैं तो 4 ग्लैंड्स रहती है, 4 पैराथायराइड है, वो 3 निकालते हैं, 1 को छोड़ते हैं, बिकॉज उसका कुछ काम है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो इतना काम करती है कि 4 का सपोर्ट ले लेती है, तो आपको उसका भी आधा हिस्सा कभी कभी निकालने की जरूरत पड़ती है। वो बोलते ना कि 2 किडनी थी बचपन में, 1 खराब हो गई, 1 है, लेकिन वो 1 इतना काम करती है कि दोनों के मुकाबले है। तो आपकी 4 पैराथायराइड थी, आपने 3 निकाल दी, लेकिन 1 कभी बहुत सारा काम करती है, वो आपका कैल्शियम बढ़ा सकती है। तो आपको वापस हो जाए सर्जरी की ज़रूरत पड़े या कंटिन्यूस मेडिकल थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। कैल्शियम के साथ में विटामिन डी का क्या रिलेशन है? उसका डोज सप्लीमेंट कैसे लेना चाहिए, कितने इंटरवल में लेना चाहिए? अगर कैल्शियम को बॉडी के अंदर या ब्लड में जाना है, आपके खाने में जितना भी कैल्शियम है, अगर वो कैल्शियम को ब्लड में जाना है तो विटामिन डी के थ्रू जा सकता है। अगर विटामिन डी आपके बॉडी में नहीं है तो कैल्शियम आपके ब्लड में या आपके बोन में नहीं जा सकता। तो हम लोग बोलते हैं विटामिन डी उसकी चाबी है कैल्शियम को बॉडी के अंदर घुसने की, इसलिए विटामिन डी कंपलसरी है। आप जितनी भी टैबलेट्स कैल्शियम की खाएंगे सब में बाय डिफ़ॉल्ट विटामिन डी आता ही है, वो गवर्नमेंट के रेगुलेशन में है। कोई भी कैल्शियम की गोली आप ऐसी नहीं देखेंगे जिसमें सिर्फ कैल्शियम है, वो बाय डिफ़ॉल्ट विटामिन डी आता है। लेकिन अगर विटामिन डी कम है तो विटामिन डी की सेपरेट टैबलेट्स भी आती है जो हफ्ते में आप लेते हैं या महीने में लेते हैं, टैबलेट्स आती है, लिक्विड्स आते हैं, शॉट्स आते हैं, वो विटामिन डी आप ले सकते हैं। यूजुअली अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, आपके रिपोर्ट्स में आ रहा है, तो आप इंजेक्टेबल लीजिए, इंजेक्शन को डॉक्टर से 1 या 2, बहुत सारे डॉक्टर 5 इंजेक्शन 6 इंजेक्शन लिख के देते, वो पहले देते थे, पहले एंडोक्राइनोलॉजी का डिटेल नॉलेज अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने देखे डॉक्टर लोग 6-6 इंजेक्शन लिखते थे। अभी हार्डली आपको कोई लिख के देगा, लेकिन मेरी एडवाइस है कि आप कभी भी इंजेक्शन फॉर्म में लेंगे तो 1 मैक्सिमम 2 के ऊपर आपको विटामिन डी के इंजेक्शन नहीं लेने चाहिए। टैबलेट्स हफ्ते में लेते रहिए 6-8 हफ्तों के लिए, बाद में महीने में 1 करते रहिए, आप खा सकते हैं लंबा टाइम। कड़ी पत्ता, संतरा और मौसम्बी इम्पॉर्टेंट कहते हैं, इसमें क्या कैल्शियम ज़्यादा है? सॉरी कड़ी पत्ता, संतरा और मौसम्बी इम्पॉर्टेंट कहते हैं। अच्छा, कड़ी पत्ते की तो मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन संतरा मौसम्बी डेफिनेटली अच्छा है। संतरा मौसम्बी में विटामिन सी भी है, ओके। और दूसरा आपने में ऐसा बोलते कि खट्टा नहीं खाओ, खट्टा नहीं खाओ। आपको डॉक्टर के पास भी जाएंगे ना, डॉक्टर साहब ओके बीमारी थी क्यों, खाने में क्या चेंज करें, तो आपको हमेशा डॉक्टर की एक टैगलाइन आएगी, जो खट्टा और ठंडा कम खाना। हम जब बोलते हैं ना तो पेशेंट को अच्छा लगता है, हाँ डॉक्टर ने बोला खट्टा नहीं खाने का और ठंडा नहीं खाने का। सी उसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको वो एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो मेरी 5-10 मिनट और चली जाएगी, तो बाहर मेरे बहुत सारे पेशेंट वेटिंग में रहेंगे। तो मैंने उतना बोल दिया, आप खुश होकर चले गए। इसके ऊपर हमने स्टडी किया है, हमने पर्सनल स्टडी किया है कि पेशेंट को वो नींबू के ये आते ना, हाँ, उसको हमने कैप्सूल में डाल के स्टडी किया था कि एक 50 पेशेंट को नॉर्मल कैप्सूल दिया था और दूसरे 50 पेशेंट को वो खट्टी चीज़ नींबू के जो वो आते सीड्स, वो हमने कैप्सूल डाल के दिया था। जब हमने उनको इवेल्यूट किया
तो जो लोग ने खट्टी चीज़ें खाई थी उनको बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो कैप्सूल फॉर्म में थी, उनको टेस्ट नहीं था, राइट। तो डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जिन लोग को आर्थराइटिस है, वात जो बोलते हैं, उन लोग में कभी कभी खट्टा ठंडा खाने से या फर्मेंटेड चीज़ें खाने से जॉइंट पेन टेम्पररी बढ़ते हैं, बीमारी नहीं बढ़ती। सर, क्या जॉइंट पेन से बोन कैंसर हो सकता है? जॉइंट पेन से बोन कैंसर कभी भी नहीं हो सकता, उसका कोई रिलेशन नहीं है। एंकल जॉइंट, पगना तड़िया, हील पेन में वॉक कर सकते हैं? अगर आपको पेन ज़्यादा है तो अगर आप चलेंगे तो दर्द और बढ़ेगा, तो पहले उसकी ट्रीटमेंट लीजिए, पेन कम होना चाहिए, फिर आप चल सकते हैं। जब पेन ज़्यादा होगा तो वॉक न। तो सपोज पेन कम हो जाता है, अगर उसकी ट्रीटमेंट लेके उसको पेन कम हो जाता है तो क्या वो चल सकते हैं और कितनी देर चलना चाहिए? अगर आपका प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व हो गया है तो आप चल सकते हैं। लेकिन यूजुअली फुट में जिन लोगों के हील पेन्स होते हैं, लाइक प्लांटर फेशियाइटिस बोलते हैं, या स्पर होता है, या हम लोग बोलते हैं कि हड्डी बढ़ गई है, ये लोग जितना ज़्यादा चलेंगे उनको फ्यूचर में पेन आने के चांसेस ज़्यादा है। तो उसका रीज़न क्या है? आप अगर वेट ज़्यादा है कि आपके फॉल्टी फुटवेयर से, पहले आप उसको चेंज कीजिए, 4-6 महीने में प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व हो गया, फिर आप वॉक कर सकते हैं। लेकिन ये लोगों को हमेशा नरम फुटवेयर पहन के ही वॉक करना चाहिए और वॉक ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना चाहिए। आप सोचे नहीं मेरी कैपेसिटी 1 घंटे चलने की है और आप पहले दिन से 1 घंटा चलना शुरू कर दें, प्रॉब्लम वापस आ जाएगा। इससे पहले कम चलिए, आप देखिए आपकी तकलीफ नहीं हो रही तो आप स्लोली वॉकिंग बिल्टअप कर सकते हैं। મારા ઘૂંટણમાં ચાલતી વખતે કટકટ અવાજ થાય છે, તેનો ઉપાય જણાવો। શું ઓપરેશન વગર સારું થઈ શકશે? अगर सिर्फ आवाज़ आ रही है और कोई दर्द नहीं है, કટકટ આવાજ। तो कभी कभी कोई लोग म्यूजिक सिस्टम लेके पैदा होते हैं। हमने ऐसे बहुत सारे यंग पेशेंट्स देखे हुए, वो शादी का तो उनकी सास उनको लेके आती है, बोला इसको ठीक करो, बोला क्या हो गया, बोला जब चलती है कट कट आवाज़ आती है, पूरे घर में उसकी घुटना बजता रहता है। मैं उससे पूछता हूँ कोई तकलीफ है? नहीं कोई तकलीफ नहीं है, मेरी सास को तकलीफ है, आवाज़ आ रहा हो। तो सिर्फ आवाज़ आ रहा है, आपके सब फंक्शन नॉर्मल है, सूजन नहीं है तो नॉर्मल है। और वो आवाज़ जो सुनाई देती है कट ऐसे, तो वो मोस्टली नॉर्मल है। जब घिसता है तो आवाज़ नहीं आती, ऐसा फील होता है कर्र कर्र। आप ऐसा घुट्टे पे हाथ रखिए, ऐसा हिलाइएगा, अब कर्र कर्र फील होगा। तो जो घिसा हुआ है तो वो आवाज़ नहीं करता, वो ऐसे ऐसे बोलता है, वो फील होता है, वो बचता नहीं है। હાડકા માટે ઘી અને પાક ખાવું જોઈએ? घी अने પાક पान પાક 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 नहीं। લાડવા। सी मैंने पहले ही बोला, लोगों को ऐसा है कि ऑयल खराब है लेकिन घी तो अच्छा है। सी घी में कोई विटामिन्स है जो ऑयल से अच्छे हैं डेफिनेटली, लेकिन इन जनरल ऑयल घी भी खराब है, ऑयल भी खराब है, घी भी खराब है। थोड़ा लिमिटेड अमाउंट्स में अच्छे हैं बिकॉज वो कोई कोई विटामिन्स के लिए ज़रूरी है। लेकिन इन जनरल ये सब चीज़ों से आपका वेट बढ़ता है, ये चीज़ें खाने से चिकनाहट नहीं आती, तो मेरे तरफ से नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर आप हेल्दी हो, फिट एंड फाइन हो, आप एक्सरसाइज करते हो, आपको जो खाना है खाओ। आप अगर ओवर वेट हो, आपकी ऐसा लग रहा है कि आपकी एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, तो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन मैं एकदम स्लिम ट्रिम फिट फाइन रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चिकन फिश एग जो खाना है सब खाओ, बिकॉज मैं खा रहा हूँ और उसको यूटिलाइज कर रहा हूँ। सो आपका एक्टिविटी लेवल वो हिसाब से है तो आप ज़रूर खाइए। आप ऐसे बहुत सारे लोग देखें, आप अपनी इसमें जो अपने सीनियर बैठे हैं ना, उसमें से आप किसी को पूछिएगा, ऐसे बहुत सारे अपने लोग थे जो 1-1 किलो घी पी जाते थे। आप पूछिएगा जो अपने गांव वाले ना, उसमें कोई ना कोई तो रहेगा आपको बोला कि हमारे गांव में ये बंदा था जो 1 किलो घी पी जाता था, हम तो सोच भी नहीं सकते। तो वो टाइम पे वो लोग फिजिकली इतना काम करते थे कि वो उसको भी डाइजेस्ट कर जाते थे। हम लोग आज 1 किलो घी खा लिया तो कल कोकलाबेन में एडे आप किधर एडमिट हो जाएंगे, मतलब ब्लॉक हो गए। तो आपका एक्टिविटी वो हिसाब से तो आप ज़रूर खा सकते हैं। એટલે 1 કિલો ઘી તો જવા દો, 1 ચમચી બી ખાવું છે તો એને પચાવવા માટે તમારે એક્સરસાઇઝ યા વોક કરવું જરૂરી છે। રાઈટ।
ગોલ બ્લેડરમાં પથરી થઈ છે તો કેલ્શિયમની ગોળીઓ લઈ શકાય? ले सकते हैं, बिकॉज सी आपको पहले ये फाइंड आउट करना है कि जो स्टोन हुआ है वो कैल्शियम की वजह से है या ऑक्जेलेट की वजह से है। लेकिन ऐसा डायरेक्ट ऐसा कि आप कैल्शियम खाओ और आपके गॉल ब्लैडर में जाके डिपॉजिट हो जावे, वैसा नहीं है। वैसा आपको किडनी स्टोन में हो सकता है। कभी कभी कोई लोगों में आप ज़्यादा कैल्शियम रहता है तो किडनी में वो डिपॉजिट हो सकता है। गॉल ब्लैडर में चांसेस ना के बराबर है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या है और अर्ली एज में क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? अर्ली एज में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होगा ही नहीं। अर्ली एज में डिस्क पेन होगा, गाड़ी दमेगी, गाड़ी स्लिप होगी। तो आपका जो पोस्चर है बेसिकली, मैं आपको बताया, जो गर्दन झुक के जो काम करते हैं, जैसे कि अगर यंग एज वाले हैं तो मोस्टली वो लोग डेस्क जॉब करते हैं, लाइक लैपटॉप पे बैठते हैं या कंप्यूटर बैठते हैं, वो कांस्टेंट सिटिंग आता है। और आपको लैपटॉप रखने की पोजीशन रॉन्ग है, आप गर्दन को झुका के काम करते हैं, या मोबाइल्स वगैरह, आजकल आप जिसको भी देखो पूरा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, तो मोबाइल आप हमेशा ऐसा यूज़ करते हैं जहाँ गर्दन कांस्टेंट झुकी हुई रहती है। तो एक्सट्रीम झुक के या एक्सट्रीम कांस्टेंट बैठ के काम कम करो, प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक्सरसाइज। सर मैं डे टाइम में खड़ी रहती हूँ तभी मुझे पैर दर्द नहीं कर रहा है, लेकिन एज सुन एज रात को सोने लगती हूँ तो पूरा काफ दर्द करता है और ऐसा लगता है कि काफ खींच रहे हैं, मतलब पैर खींचा रहे हैं। आप डे टाइम पे खड़ा रहना कम कर दो, रात में काफ नहीं दुखेगा। बस पूरा दिन खड़े तो रात में दुखने ही वाला है ना। नहीं, लेकिन जो लेडीज़ लोग घर में काम करती है वो यूजुअली 1 या 2 घंटा तो खड़ी रहती है, लेकिन फिर रात को उसको काफ में दर्द होता है। क्योंकि आपका मसल पूरा दिन के स्टैंडिंग की वजह से टायर्ड हो गया है, उसमें सूजन आती है। जिसका ये क्वेश्चन है, मेरी उसके रिक्वेस्ट है कि आप जब भी किचन में काम करें, आप एक टेबल रखना शुरू कीजिए, खड़े रहिए, बैठिए, खड़े रहिए, बैठिए, और घर के अंदर थोड़ी हील्स वाले, हल्का सा फ्लैट नहीं, थोड़ा सा हील वाला फुटवेयर नरम पहनिए, पेन कम हो जाएगा। विटामिन कैल्शियम ऐड कर सकते हैं। व्हाट इज टेनिस एल्बो? ऐसा लग रहा है कि ऑर्थोपेडिक्स आज इधर ही खत्म हो जाएगा। तो आपके पास कोई आवे ही नहीं ना। मैं दुआ करूं मेरे पास के प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाने चाहिए। नहीं, आई विश कि कोई बीमार हो के मेरे पास नहीं आवे, हम लोग ऐसे ही मिले इंशाल्लाह। टेनिस एल्बो एक ऐसी बीमारी है जो आपके कोहनी में से एक मसल खींच जाता है। वो मसल खींचने की वजह से आपको बीमारी होती है। आप वो हाथ का यूज़ कम कर दो, ये ओवर यूज़ इंजरी है। मीन्स आप अभी मैं राइट ही ऊपर दिन अगर राइट से ही काम कर रहा हूँ, ब्रश मार रहा हूँ, झाड़ू झपटा कर रहा हूँ, साफ़ सफाई कर रहा हूँ, कपड़े निचोड़ रहा हूँ, तो कोई मसल ज़्यादा यूज़ हो रहे और वो खींच जाएंगे। इसकी बेस्ट ट्रीटमेंट, वो हाथ को आप रेस्ट दो, हील हो जाएगा। क्या संधिवा ठीक हो सकता है? क्या उसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने से ठीक हो सकता है? इसके लिए मेरे को आयुर्वेदिक वापस स्टडी करना पड़ेगा। मतलब उसके लिए मैं ओपिनियन नहीं दे सकता हूँ, बिकॉज मैं आयुर्वेदिक एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन अगर आपने ट्रीटमेंट की है आयुर्वेदिक और आपको फ़ायदा हो रहा है, आप ले सकते हैं, बिकॉज वो भी एक पैथी है। ऐसा नहीं है कि वो रॉन्ग है, वो भी एक पैथी है। बहुत सारे पेशेंट हमने देखे हैं कि जो होम्योपैथी भी करते हैं, तो आप कर सकते हैं। अगर आपको जम रहा है तो करने में कोई नुकसान नहीं है। एलोपैथी डेफिनेटली उसका बहुत बड़ा मेडिसिन का रोल है। आप लॉन्ग टर्म मेडिसिन लेंगे तो आप कंट्रोल में आ जाएंगे। आप बोलेंगे मेरे बॉडी में से वात चला गया, ये रेयरली होता है। मतलब ऐसा होता है कि आपका वात कंट्रोल में आ गया, डॉक्टर आपकी दवाइयाँ बंद कर देगा, लेकिन कभी कभी वापस वात आ सकता है और कभी कभी वो वात आपकी बॉडी में कंट्रोल में आ जाएगा, तो ज़िंदगी और आपको तकलीफ नहीं देता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि वो 40-50% पॉपुलेशन होता है जिसमें थोड़ा बहुत दर्द होता रहता है। आजकल मोबाइल ज़्यादा हाथ में पकड़ने से थोड़ी देर के बाद हाथ में खाली चढ़ने लगती है, उसका क्या रीज़न है? अगर आप हाथ को कंटिन्यूस एक पोजीशन में रखेंगे तो आपकी रिस्ट में यहाँ पे एक नस रहती है, वो कंटिन्यूस एक पोजीशन में रहने से वो नस दब जाएगी और आपके हाथ में खाली चढ़ती है। तो अगर आपको लगता है कि आपका मोबाइल का यूज़ ज़रूरी कामों के लिए ज़्यादा है तो आप हैंड्स फ्री यूज़ कर सकते हैं या ब्लूटूथ यूज़ कर सकते हैं। ओके, आपको ऐसा होल्ड नहीं करना चाहिए। और फिजूल कामों के लिए यूज़ होता है तो फिजूल काम कम कर दीजिए, ज़रूरी कामों के लिए यूज़ कीजिए। मेरी 12 साल की लड़की है, शी इज़ फिट एंड हेल्दी, लेकिन वो स्कूल में कोई भी आउटडोर एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेती है। वो हमेशा उसके पैर दर्द की कंप्लेन करती है, तो व्हाट इज़ द रीज़न? यंग एज में
हमने बहुत बार देखा है कि उनमें कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी ये बहुत कॉमन है। और ये भी कभी एग्जामिन करने में देखते हैं कि उनके जो काफ के मसल्स है वो बहुत बार टाइट रहते हैं, बिकॉज आज के बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी इन जनरल बहुत कम है। लाइक अपने टाइम पे मोबाइल ऐसा लैपटॉप वगैरह कुछ नहीं थे, तो हमको खेलना मीन्स बाहर जाके दौड़ना, कूदना, डांस करना, जंप करना, तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा थी, उसके अलावा अपने पास कुछ खेलने को था ही नहीं। ડૉક્ટર અમીનનો ઘણો ઘણો આભાર માનીશ કે તેઓ પોતાનો સમય આપ્યો, સેશન લીધું અને અમને બરાબર સવાલના જવાબ આપ્યા છે. ઘણો ઘણો આભાર.